know about wound healing, you can actually expect the complications and तुमको पता रहेगा कि कब चीजें गड़बड़ हो रही है, when you need to intervene and all that. Okay, so we'll go by our first question. As the following: early inflammatory phase, late inflammatory phase, hemostasis वगैरह. This we were talking about. Okay, fine. So see, the thing is, you guys would have learned, and most of you answered this correctly. Remembering this stuff when you have all 30 chapters of daily, 30 chapters of Sabbath. So I want कि इस class के बाद you should not have to revise this thing at all. ठीक है, ये done and dusted हो जाना चाहिए. I'll be teaching you like that. ठीक है, अभी तो I'll give you a visual clue. ठीक है, now we all know that wound healing in skin. We'll start with skin. ठीक है, उसमें रहता ना, mainly there are 3 stages. We all know that, and one hemostatic plus one, the immediate stage. So अगर कभी कोई पूछे which are the main stages, अपना 3 आ जाएगा. Now how we'll go with it? I'll give you a visual clue, a simple clue. अभी सबने धुरंधर मूवी देखी होगी, ठीक है? So your visual cue would be the attack on Parliament. Okay, the attack on Parliament. The movie had started with that. जिसने नहीं देखी है देख लो जा करके, अभी नहीं. Okay, so when there is an injury, ठीक है, तो सबसे पहले when the attack happened, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, they shut down the Parliament का gate. ठीक है, वो था hemostasis immediately. उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने उस एरिया में कर्फ्यू लगाया, एंड वहां पे फिर देन दे स्टार्टेड कॉलिंग द पुलिस, द आर्मी, एवरीथिंग. सो सेकंड पार्ट वाज कि उस एरिया को आप आइसोलेट करिए, यू कॉल फॉर हेल्प, कि चीजें पहुंचे वहां पे, तो चीजें वहां तक पहुंचे के लिए बाकी सबको आप रोक देते हैं. दैट इज इन्फ्लेमेशन. ओके, एंड द फाइट बिगिंस, विच इज द प्रोलिफरेटिव फेज. इसमें सारा कुछ साइटोकाइन वगैरह आएगा, एंड देन लास्टली when everything finishes off, then आपका policy changes, then we'll attack ये वो. That is maturation. You mature, you learn from it. ठीक है, so that will be your visual cue. कभी भी तुम कंफ्यूज होगे बात के किसी क्वेश्चन में, क्या पहले था, क्या बात था, क्या आता है, क्या नहीं आता, रिमेंबर दिस पार्लियामेंट अटैक. और यू कैन ऑल्सो रिमेंबर इंजरी में, लाइक अब बॉक्सिंग मैच में मोस्ट ऑफ द मूवीज में क्या होता है, लास्ट में हीरो को एक पड़ती है, ठीक है, देन ही गेट्स नॉक्ड ऑफ. सो दैट्स अगेन हीमोस्टेसिस. नाउ दैट काउंट्स 1 2 3 4 5 6. So that time he regenerates, he recuperates. ठीक है, वो अपना मतलब he gathers back this strength. So that will be ये inflammation. Then the fight begins, which is proliferation, and then he wins and then lives his life. That is maturation. ठीक है, तो ये stages हैं. Now what I want you to think is कि जब inflammation होता है, when there is an inflammation, so what are the signs of inflammation? We'll come to the cells and all, but I want you all to think also. इन्फ्लेमेशन होता है तो सबसे पहले नो देर इज साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन आता है पेन. ठीक है, देर इज पेन, देर इज रूबर, रेडनेस बिकॉज ऑफ आपका हिस्टामिन, सेरोटोनिन वगैरह सब आता है, सो दैट यू नो दी इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स जो है वो आ सके उधर से, मतलब जो सेल्स वगैरह है जो आते हैं. सो रूबर कैलर, देन देर इज स्वेलिंग बिकॉज ऑफ दैट, ट्यूमर. तो इन्फ्लेमेशन, if there is pain, so why do you think pain is there in inflammation? Anyone? One word answer. Anyone can type it, or या mic off करके बोल सकते हो. Do you think there is pain? The area of inflammation. Make that area immobile. उस एरिया को आइसोलेट करने के लिए, सपोज किसी जानवर का हाथ फ्रैक्चर होता है and there is inflammation यहाँ पे, he won't move this. यहाँ पे when there is immobility, इस एरिया को आइसोलेट किया है, एंड देन एवरीथिंग इज बीइंग डायरेक्टेड यहाँ पे इसके तरफ में. तो ऑब्वियसली आपको बाकी सारा जो है शट डाउन करना पड़ेगा. आपका एनर्जी लेवल जो है वहां पे बाकी हर जगह रोकना पड़ेगा. तो एट द साइट जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है उस समय 24 to 48 आवर्स के लिए यहाँ पे पेन है, यहाँ पे रूबर है, यहाँ पे सारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स वगैरह पहुंच रहे हैं. बाकी बॉडी इज एक्टिविटी कम हो गई है ऑन द ऑर्गेनिज्म लेवल. Can you tell me what phase that is? If this is inflammation, what is happening here for the first 24 to 48 hours after injury? What happens to the organism? What phase? जो brownie points जो बताएगा उसको बहुत सारे points मिलेंगे. I think you guys can type, right? Type कर सकते हो. Ebb phase. So Yes, brilliant. कौन था ये?
रुद्राक्षी सुपर है। देखो, सो दैट्स हाउ यू कनेक्ट थिंग्स। ठीक है, आप सोचिए, शुरू में मैं अपन टेस्ट एंड डिस्कशन पे आएंगे, बट बिफोर दैट, सो दैट इज एब फेज एग्जैक्टली। एब इज दैट ब्लो। जब ब्लो पड़ा, वहां पे हुई है, वहां पे हो रहा है इन्फ्लेमेशन, सब कुछ वहां पे भेजना है, बाकी बॉडी को शांत कर दो, तो आपका हो जाएगा। तो बाकी बॉडी में आप मेजर कर रहे हैं ना बीएमआर, आप बीएमआर इस एरिया का मेजर नहीं कर रहे हैं, आप बॉडी का मेजर कर रहे हैं। मेटाबॉलिक रेट कम हो रहा है, कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है, देन उसके कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है, तो लैक्टिक एसिडोसिस बढ़ रहा है। लैक्टिक एसिडोसिस इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेमेशन चल रही है, देयर इज एसिडोसिस हैपनिंग राइट देयर। तुम वो भी याद कर सकते हो, एक से दूसरा रिलेट करके चलोगे, यू रिमेंबर। ठीक है, देन कम्स इन्फ्लेमेशन के बाद आता है proliferation. Proliferation में now once the cells have come, the neutrophils, the macrophages have come, which I'll tell later. तो वहां पे देन आपका डिब्रा ये फेगोसाइटोसिस स्टार्ट होगा, दे स्टार्ट टू क्लीन अप थिंग्स, माइक्रो बैक्टीरियाइडल एक्टिविटी स्टार्ट होगी, सब कुछ होगा वहां पे। नाउ यहाँ पे लड़ाई शुरू हो रही है, तो पूरे बॉडी में आपको फ्लो फेज का कैटाबॉलिक फेज देखने को मिलेगा। ठीक है, एज सिंपल। सो वहां पे कैटाबॉलिक फेज देखने को मिलेगा, एंड देन फाइनली आफ्टर दोज 3 वीक्स, उस तरफ आई थिंक 2 वीक्स लिखते हैं, 10 to 14 days, यहाँ पे 3 वीक्स बोलते हैं। एंड आफ्टर दैट फाइनली द ये रिमॉडलिंग स्टार्ट्स, इसको कि वहां पे एनाबॉलिक स्टेज ऑफ फ्लो फेज बोलते हैं। यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग दैट? So we are connecting chapter 2 with chapter 3. Chapter 2 was dealing on the organism level. Now we are dealing at the injury level. Now, अगर ये सब कुछ इतना अच्छा था, so why do we need doctors? Why doesn't itself nature is so good कि इसका इतना अच्छा properties है ये सारा कुछ? So why do we need doctors? Where do we come in? Anyone who wants to switch off the mic and try? See, I really want you all to try. There is no one is gonna judge you here. मैं बार बार बोल रहा हूँ, बार बार तुम अपनी गलतियां यहाँ पे कर लो, एक अंडरस्टैंडिंग रख लो, बिकॉज सुपर स्पेशलिटी में जाओगे, देन यू कांट टेक रेफरेंसेस यहाँ वहाँ, यू विल बी एक्सपेक्टेड टू टेक डिसीजंस एज अ टक टक टक, एंड थिंग्स विल बी एट वेरी हाई स्टेज। So start thinking now. Anyone wants to try? Where do we come in? देखो, ये जो लूप है ना सारा कुछ, ऑल ऑफ दिस ऑफ इन्फ्लेमेशन, प्रोलिफरेशन, मैचुरेशन, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स आ रहे हैं, दोज ऑल वर मेड फॉर नॉर्मल इंजरीज। ओके, कि अपना स्मॉलर इंजरी जो क्लोज लूप में चलता हो, कि हाँ भाई आपने आए, कुछ मैक्रोफेजेस आए, एंड देन दे क्लियर्ड ऑल द बैक्टीरिया, एंड देन अगला फेज स्टार्ट हुआ। बट जहां कहीं भी wherever there is a bigger injury, वहां पे the loop doesn't close, it stays open, macrophages आते रहेंगे, and they'll keep coming, and then that leads to overwhelming, and then the organism dies. So us as doctors, when you know this process is going on, you have to close the loop. Like देखो, इंजरी में क्या होता है, इंजरी में देर इज बैक्टीरियल कंटामिनेशन है, एंड देर इज फ्लूइड लॉस, टिश्यू लॉस, ब्लड लॉस हो रहा है। ओके, दो ही चीजें होती है, शॉक होता है और सेप्सिस हो जा रहा है। तो फॉर शॉक वी विल गिव आईवी फ्लूइड, ताकि आपका वो जो लूप है वो क्लोज हो सके। नाउ फाइनली व्हेन द बॉडी इज ट्राइंग टू हील, इट स्टार्ट्स टू हील इटसेल्फ, एंड व्हेन देयर इज कंटामिनेशन, मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स जितना नहीं कर पाएंगे, उतना आप कर दो, यू डू द डिब्राइडमेंट। सो दैट्स व्हाई वी डू डिब्राइडमेंट, दैट्स व्हाई वी सपोर्ट द पेशेंट्स, एंड देन वी गिव द एंटीबायोटिक्स आल्सो। तो यहाँ पे दिस इज वेयर वी कम इन। आई होप यू गाइस गॉट दीज थिंग्स। नाउ वील विद दैट इन माइंड वी विल स्टार्ट। सो 3 stages ऑलरेडी आपको बोला हुआ है, द विजुअल क्यू आल्सो आई गेव यू। इमीडिएट वुड बी दिस अपना hemostasis, and then the 3 stages first would be inflammation, then will be proliferation, and last would be remodeling. अभी सबसे पहले आता है hemostasis. The cell that regulates hemostasis is, यहाँ पे आता है platelet है। It has 2 types of granules. Okay, now we have alpha granules and delta granules. Okay, यहाँ पे now see, if I ask you, if I give you 4 options, ठीक है, कि अब मेरे को बता दो कि there are 4 things, 4 products of platelet. Now you tell me which part secretes what. Okay, so if I ask you serotonin, if I ask you DP, if I ask you growth factors, platelet derived growth factors, fibrinogen growth factors, do you think which particle would be secreting? Like growth factors है, platelet derived growth factors है, fibroblast growth factors है, TGF beta है, and then there is histamine, serotonin, calcium, ATP.
which one would you think would be secreting what? Anyway, see, the concept is कि most commonly the first granule would be the one जो main काम करता है उसके लिए. For example, stomach में, if I ask you chief cells and parietal cells, parietal cell होता है ना body में, chief cell होता है उधर pit के अंदर. Which one do you think secretes digestive enzyme and which one secretes HCl? Yes, ठीक है, मैं ही बताता हूँ. है ना, बहुत पहले का पढ़ा हुआ, याद तो नहीं आ रहा होगा. अब मेरे को ये बताओ, डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन काम क्या है? डाइजेशन है या कुछ और है? यू कैन ईदर राइट योर आंसर और टेल मी. सी, ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम का द मेन वर्क इज डाइजेशन. सो द चीफ सेल्स ऑफ स्टमक वुड बी सिक्रीटिंग डाइजेस्टिव पेप्सिनोजेन एंड वो सब, ठीक है. एंड द पैराइटल सेल, पैराइटल मतलब होता है बॉडी, ओके, जैसे होता है ना अपना पैराइटल लोब, दैट बॉडी से रिलेटेड. पैराइटल सेल्स मतलब बॉडी के सेल्स जो हैं यहाँ पर के, दे विल बी सिक्रेटिंग HCl, द सपोर्टिव थिंग्स, ठीक है. ऐसा हर बार नहीं होता, बट कॉमनली, सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू गिव यू इज, इवन इफ अ क्वेश्चन कम्स, जब ये याद नहीं आ रहा है, देन यू कैन वर्क आउट लाइक दैट. तो चीफ सेल वुड बी सिक्रेटिंग पेप्सिनोजन, चीफ सेल, ठीक है. पैराइटल सेल HCl, वेरी गुड. सो मेन काम क्या था अपना? डाइजेस्टिव सिस्टम का डाइजेशन. सो चीफ सेल्स वुड सिक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम. सपोर्ट करने के लिए भाई माइकोबैक्टीरियम मारा, उसको मारो, ये करो, HCl. Similarly, why did I bring this up is when we talk about platelets, तो प्लेटलेट्स का पेज ऐड हो जाता है. हाँ, added many pages. So similarly, platelet का when we talk about granules, alpha granules and delta granules, ये questions आते रहते हैं. So on the growth factor, other than that, your transformation growth factor beta will be from alpha granules, and delta will secrete supportive histamine, serotonin. So histamine and serotonin क्या करेगा? They will facilitate the next phase. मतलब ये वेसल्स को डायलेट करेंगे. सेरोटोनिन हमें पता है ना, इट कॉजेज अपना इसमें NET वगैरह में भी रहता है, इन दोज ऑल सिंड्रोम्स. इट विल try to pro-inflammatory हैं सारे. So these will dilate the blood vessels so that the next cells can come. Okay. So with that, now if transformation growth factor beta, ये हमारा अच्छा बेटा, okay, अच्छा बेटा है हमारा, राजा बेटा. Why did I say that? Because there is something called as TGF alpha also. इसमें तुम confuse हो सकते हो. So where do you think TGF alpha is seen? It is overexpressed in tumors. Now I'll tell you something. This is how I used to study, or this is my approach of study. I digress very rapidly. Take one thing and I will branch it out so that I can solve many more questions, so that एक study session से you will be able to catch up many questions. Okay, so if this approach is good for you and you want to focus only on platelet and not go here and there कि stomach का भी बता रहे हैं, chief cell होता है, alpha बता रहे हैं, then you let me know, because ये this has to be tailored to according to you. So should I continue in this way? समझ में आ रहा है, या should I stay only on the topic? Okay, if you want me to continue, would give thumbs up. Okay, good. See, because this way, no, आप topic पढ़ेंगे ना, you will have a very broad understanding. So, okay, now TGF beta का I gave you, this is our अच्छा beta. Okay, ये भी आता रहता है, लोग पूछते रहते हैं, अच्छा beta मतलब transformation growth factor beta. And the TGF alpha is overexpressed in tumors. Okay, now coming forward, now I told you alpha से तो वो platelet का क्या था, hemostasis रोक दिया. Now the beta granules secreted histamine, serotonin, that dilated the vessels, ठीक है. तो वहां पे क्या हो गया, रूबर लाल लाल होने लगा, एंड नाउ द सेल्स विल कम. सो नाउ वी गो इनटू inflammation, sorry, not proliferation. Now is again divided. So hemostasis में serotonin, now they've started inflammation, which will be up to 3 days. Also divided into two parts, early and late. ठीक है. अब अगेन आई विल गिव यू ऑप्शंस. दो ऑप्शन है, दो सेल्स आएंगे हमारे पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, जो कि हमारे न्यूट्रोफिल. एंड देयर आर मोनोसाइट्स विच बिकम मैक्रोफेजेस, ठीक है. एंड तीसरा होता है मैक्रोफेजेस, पहले से ही ऑप्शन में रहेगा, ठीक है, विच आर टिश्यू हिस्टोसाइट्स. Which cell would come in early phase, which cell would come in late phase? Now suppose if you don't remember, you tell me one thing, neutrophil and macrophage में which is a bigger cell and which is a smaller cell? Who think neutrophil a smaller cell, raise your hand. मतलब give me a thumbs up. So what we have here is the macrophages
and neutrophil leukocytes जो हैं, they come first. Why? Because they are roaming around. Everything is in blood, but they are smaller cells. So early phase of inflammation में, you write that in neutrophils, PMN, leukocyte, polymorphic nuclear leukocytes, which will be neutrophils. Okay, they will come later. जो है आपका monocytes जो है, जो कि blood में है, they will come back and they will become macrophages. Okay, so don't forget that. If they ask you early inflammation, late inflammation, always remember कि आपका neutrophil will come first, then comes monocytes. वो बढ़ रहे हैं, धीरे अपने आराम से आएंगे, and they have to be the link to the next stage. So they have to come इधर पीछे ताकि next वाले में पहले आ सके. You can see अभी it might seem very simple कि यार इस पे टाइम लगा रहे हैं न्यूट्रोफिल. 60 चैप्टर हो जाने के बाद ये एक बात जो है ना, एग्जाम वाले दिन याद नहीं आती. सो आई एम टीचिंग यू फॉर दैट डे. ठीक है, बट अगर लगे कि पेज स्लो है तो भी बता देना, इंक्रीज माई पेज. ठीक है. सो अर्ली अब मैंने बताया आपको, अर्ली इज डे 1 to 2 एंड दिस इज लेट इज डे 2-3. ओके, नाउ डे 1 to 2 में मैंने बताया आपको कि प्लेटलेट, पीएमएन, न्यूट्रोफिल्स वगैरह वो सब आया, देन हिस्टामिन, न्यूट्रोफिल, सेरोटोनिन आया, देन मोनोसाइट्स आए, देन मैक्रोफेजेस बने. नाउ दीज मैक्रोफेजेस विल रिक्रूट फाइब्रोब्लास्ट, व्हिच इज आवर मेन कैरेक्टर फॉर द प्रोलिफरेटिव फेज. ओके, तो ये सबको पता है कि नाउ कैन एनीवन टेल मी इन्फ्लेमेशन में रूबर, डोलर, स्कैलर ट्यूमर तो होता है, रेडनेस, पेन, temperature and swelling. What is the fifth thing of inflammation? It is punctulasia. ठीक है ना, that non-functional जो हो जाता है, that is the fifth thing that was added. मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ. Proliferative phase में fibroblast has come. It will secrete mostly type 3 collagen, है ना. That is what it will secrete, and then it will go till from 3 days, weeks बाद में remodeling शुरू हो जाता है. Now there's a mnemonic. See, if you see wound, W, okay, wound healing. If you turn this W, it becomes 3. Okay, now ये पूरा chapter can be summarized by this. It will be 3 days. You write 3 days, weeks. Why is it not working? 3 weeks. Then उसके बाद, so first 3 days was our inflammation. It was proliferation, remodeling. Remodeling goes until about 1 to 2 years. ठीक है, 1 से 2 साल तक चलता है. So that we are not adding. But there is about with 3 months. What is that? 3 months, मतलब 12 weeks is when your maximum strength is attained. I'm writing it here so that you remember it. ये सब notes में मैं दे दूंगा बाद में अलग से लिख के. ठीक है. What is the maximum strength that is at 100%? 80%? 80%. Very good. ठीक है, 80%. क्योंकि भगवान सबसे अच्छे आर्किटेक्ट हैं. अपन इंजरी हो जाने के बाद मतलब 80% ही होती है, वो तो भगवान ही कर रहा है, मुझे लगा अपन कर. एनीवे, सो वन निमोनिक इज वुंड को यू टर्न इट, इट बिकम्स 3 days, 3 weeks, 3 months, मतलब 12 weeks is maximum strength is 80. There is also what is 30 will come later. ये आपका एक्चुअली स्टेरॉइड की डोज होती है, जो इंट्रालीजनल हम लोग हाइपरट्रोफी स्कार वगैरह में देखेंगे, वो वहां पे आने वाला है 30. ओके, so these are your mnemonics which you will get. So mainly it is 3 days, 3 weeks that you have to remember. ठीक है, बाकी 1 से 2 साल तक चलता है. Now अब आते हैं अपन रिमॉडलिंग पे थे. We were at रिमॉडलिंग में obviously you know कि type 3 collagen turns into type 1 collagen. Okay, again जब मैंने बोला था ना तुमको कि see the main thing is named. ठीक है, मेन थिंग इज नेम फर्स्ट. अल्फा डेल्टा में अल्फा मेन काम करेगा, चीफ सेल पैराइटल सेल में चीफ सेल मेन काम करेगा. अगेन व्हेन यू सी टाइप 1 कोलाजन एंड टाइप 3 कोलाजन, नॉर्मली सबसे ज्यादा कौन सा कोलाजन होता है? विल इट बी टाइप 3 और टाइप 1? नॉर्मली 1. ठीक है, तो अगेन इफ यू सी नॉर्मली इट विल बी 1, बट ड्यूरिंग आपका जो इनिशियल फाइब्रोब्लास्ट जो बनाता है दैट इज टाइप 3 कोलाजन प्रोलिफरेशन फेज में, एंड वो चेंज होता है टाइप 1 में विच इज नॉर्मली प्रेजेंट, विच इज ऑल्सो स्ट्रॉन्गर. ठीक है, ये सब क्वेश्चन आएंगे अचानक, आएंगे यार तुमको उस दिन कि व्हाट इज नॉर्मली फाउंड इन द बॉडी, इन्फ्लेमेशन में कौन सा होता है, 1 2 3 4 ऑप्शन तो ये रहेंगे. नाउ इफ यू फॉरगॉटन यू कैन स्टिल आराम से सोचना कि जो चीज नॉर्मल थी. व्हाई डू यू थिंक दिस कोलाजन इज नेम्ड टाइप 1? बिकॉज सी चीजों की नेमिंग जो होती है ना, दैट इज डन एज बाय द साइंटिस्ट एज दे फाइंड इट. साइंटिस्ट जो है ना, नॉर्मल चीजों पे पहले पढ़ाई करते हैं, ये बात याद रखना.
इसलिए जीन जो है ना वाइल्ड टाइप, जो नेचर में है, जो नॉर्मली है, वो होता है नॉन म्यूटेटेड, ठीक है। जो नॉन म्यूटेटेड होता है तो बोलते हैं वाइल्ड टाइप। अगेन आई एम डाइग्रेसिंग बट आई एम टेलिंग यू। तो आई थिंक टाइप 1 कोलाजन विल बी द नॉर्मल वन, जो नॉर्मली प्रेजेंट है, एंड दैट विल बी द स्ट्रॉन्गर वन, ठीक है। नाउ व्हाट आई वांट टू टेल यू इज आई वांट टू पुट योर थिंकिंग कैप्स ऑन अगेन। एंड ये जो होता है ना रेशियो, ये आपका प्रोलिफरेशन 3:1 जो रीमॉडलिंग रहता है 4:1 के रेशियो में बाद में अरेंज होता जाता है, ठीक है। 4:1 के रेशियो में, दैट यू हैव टू रिमेंबर। नाउ इफ यू सी कि भगवान ऊपर वाला जो सूचरिंग कर रहा है 4:1 के रेशियो में, ठीक है। वी ऑल्सो सूचर इन द रेशियो 4:1। कैन एनीवन टेल मी, कुछ स्ट्राइक करता है क्या 4:1 सोचने से, बोलने जेनकिंस से? जेनकिंस यस, सुपर यार। ये कौन है भाई, कौन है हमारे बीच में? ये रुद्राक्षी है क्या फिर से? नहीं सर। कौन है फिर? काजू नाम बताओ। काजू सुपर यार, सुपर, वेरी गुड। सी दिस लेवल ऑफ थॉट प्रोसेस हैज टू कम नाउ, ठीक है। कि कुछ तुम सुनो एंड कुछ और याद आना चाहिए उसे। 4:1 जेंकिंस रूल। व्हाट इज जेंकिंस रूल, कौन बताएगा? जेंकिंस रूल है कि आपका वुंड का जो लेंथ है, आपका जो सूचर का लेंथ है, वो क्या होता है, मैटर करता है। व्हाई डू यू थिंक इट इज 4:1? क्योंकि ये देखो, अगर ये सूचर है, बॉक्स टाइप अगर सूचरिंग करेंगे, ये देखो 1 2 3 4, दैट्स व्हाई दिस इज 4:1, ठीक है। हम लोग को भी पता था, जेंकिन पहले बोल गया तो आज हम लोग उसका नाम ले रहे हैं। हम लोग पहले बोल रहे थे तो हम लोग का नाम एनीवे, ठीक है। नाउ अब सी, व्हेन द स्ट्रेंथ आई टोल्ड यू नो, स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम टाइप 3 कोलाजन टाइप 1 कोलाजन, दैट इज बिकॉज आपका जो कोलाजन है ना, उसकी जो वीविंग है, वीविंग बेटर हो जाती है इन टाइप 1। तो वी ऑल नो दैट वो ब्रेडिंग छोटी छोटी बना देता है, सीन घुमा देता है ना, दैट बिकम्स मच स्ट्रॉन्गर देन वो एक कैसा रहता है तो बाल खींच देता है। एनीवे, ओके, सो नाउ आई हैव टोल्ड यू वुंड का 3 डे 3 वीक 3 मंथ भी बता दिया, कोलाजन का वो बता दिया, टेंसाइल स्ट्रेंथ बता दी, 4:1 जेंकिन भी डिस्कस कर लिया हम लोग, गैस्ट्रिक सेल, पैराइटल सेल, अल्फा डेल्टा ग्रैन्यूल, वो सब हो गया, ठीक है। बेसिकली नाउ व्हाट वी डू इज विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं क्वेश्चंस भी बताता चलूँ, क्वेश्चन तुम लोग कर लिए तो मेरे को पता है, फिनिश ऑफ द टॉपिक एंड देन वील गो थ्रू द क्वेश्चंस एट द एंड। एक बार फिर से, यू वांट मी टू स्विच बिटवीन क्वेश्चंस और डू यू वांट टू गो विद द फ्लो? अभी जैसे चल रहा है, यू कैन टाइप फ्लो और यू कैन टाइप क्यू फॉर क्वेश्चन। सब फ्लो में आ गए, बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, एकदम आराम से भी पढ़ते हैं अभी। अब देखो, अब अपन चलते हैं, ये तो हमने स्किन का पढ़ लिया, ठीक है। वी रेड अबाउट स्किन, वी सॉ हाउ बॉक्सिंग मैचेस, हाउ पार्लियामेंट का अटैक में यू नो हीमोस्टेसिस, इन्फ्लेमेशन, प्रोलिफरेशन एंड देन रिमॉडलिंग आता है। नाउ वी गो टू स्पेशल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। नाउ वी गो टू बोन, ओके। अब अपन पढ़ेंगे बोन। मजा तो इसमें, और हम लोग ये भी रिलेट किया कि वो एब एंड फ्लो फेज से इन्फ्लेमेशन कैसे रिलेट होता है। एक एरिया पे इन्फ्लेमेशन का चल रहा है, ये सारी फेजेस, एंड यही वहां पे पूरे ऑर्गेनिज्म के लेवल पे एब फ्लो हो रहा है, देन कैटाबॉलिक आएगा फ्लो का, अर्ली कैटाबॉलिक देन एनाबॉलिक, वो भी हो गया, वेरी गुड। नाउ वी कम टू बोन। वैसे देखो जो मेरा स्टाइल है, आई कीप रिलेटिंग थिंग्स, ठीक है। मैं एक चीज अकेले से तो पढ़ने वाला हूँ ही नहीं, ओके। अब मैं इधर लिखता हूँ बोन का, तुम लोग मुझे बताओगे कि कौन सा कोरिलेट कर रहा है स्किन के तरफ, ठीक है। तो अभी जो है अपना बोन में अपन पढ़ेंगे पहले सेकेंडरी हीलिंग, सेकेंडरी हीलिंग बाय सेकेंडरी इंटेंशन, जो कि है नेचुरल, नेचुरल को बोलते हैं ना, ओके। नाउ सबसे पहले यहाँ पे बनता है बोन में, बोन टूटा तो क्या बनेगा, हेमाटोमा होगा वहाँ पे, ओके, हेमाटोमा होगा ऑब्वियसली। और वो बहुत ज्यादा ब्लड लॉस भी होता है यार, ट्रॉमा के केसेस तुमने देखे होंगे, फीमर विमर टूट गया तो 1 लीटर वहीं पे इतना बड़ा वो थक्का बन जाता है। सो नाउ अगेन दैट अपन ने देखा कि उस ब्लड में प्लेटलेट, ये वो जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं, उसके लिए पहले तो अपन को प्लेटलेट चाहिए, तो हेमाटोमा तो बन गया, ठीक है। हेमाटोमा बन गया, उसके बाद ये जो है वो अभी क्या सॉफ्ट है, ऑब्वियसली इट्स लाइक, देखो नेचर में ना सेम चीज होती है हर जगह, ठीक है। एक बीज को वो पहले पौधा रहता है, सॉफ्ट रहता है, बाद में वो पेड़ बनता है, ठीक है। तो एनीवे, सो सबसे पहले बनेगा अपना सॉफ्ट कैलस, ओके। सॉफ्ट कैलस बना, सॉफ्ट है तो उसमें बोन तो होगा नहीं, ऑसिफिकेशन है नहीं, ये होगा फाइब्रो कार्टिलेजिनस, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि कार्टिलेजिनस ऑसिफिकेशन है तो याद रखना सॉफ्ट, पहले सॉफ्ट, ठीक है, सॉफ्ट कैलस, ओके। देन इट विल बिकम उसके बाद हार्ड कैलस, ठीक है। हार्ड हार्ड कैलस क्या है? हार्ड कैलस जो है ना, आपको स्टेबलाइज करेगा फ्रैक्चर को। अपन भी स्टेबलाइज करते हैं, वो ओपन रिडक्शन, इंटरनल फिक्सेशन, ऊपर वाला क्या कर रहा है,
हार्ड कैलस। वही पहले सॉफ्ट बनाया गया भाई, हमने एक फ्रेमिंग दी, सॉफ्ट था प्लास्टर, उसको हार्ड कर दिया, हार्ड प्लास्टर कर दिया, ठीक है। फिर हार्ड, तो इसमें आपका वूवन बोन आ जाता है, वूवन बोन, एंड देन लेटर वूवन बोन, हार्ड कैलस, एंड देन इट विल बिकम लैमेलर बोन। अब मेरे को बताओ स्किन वाले से इसमें क्या रिलेशन है? बोन नॉर्मली बढ़िया वाला बोन क्या होता है, वूवन होता है कि लैमेलर होता है? हैवर्जियन सिस्टम क्या पढ़ा है हमने, हैं? लैमेलर बोन सर। लैमेलर बोन होता है नॉर्मली, ठीक है। तो टाइप 3 में कोलाजन टाइप 1 बना था, नॉर्मल बना था रिमॉडलिंग के फेज में। तो ये देखो, ये जो हार्ड कैलस जो वुवन बोन है, अब वो नॉर्मली नॉर्मल लैमेलर की तरफ जाएगा, दिस विल कम अंडर रिमॉडलिंग, ठीक है। यही चीज स्किन में हो रहा था, टाइप 3 से टाइप 1 सब कुछ जो है ना नॉर्मलसी के तरफ जाएगा, विच इज एक्चुअली दी एनाबॉलिक फेज ऑफ एब फ्लो वाला, ठीक है। अब बताओ कि सॉफ्ट कैलस जो था, इसमें जो हार्ड कैलस बना, तो रिमॉडलिंग के पहले प्रोलिफरेटिव फेज आ रहा था, ठीक है। प्रोलिफरेटिव फेज, ये भी मतलब चीजों को स्टेबलाइज करना है हमें, स्टेबलाइज करना है। प्रोलिफरेटिव फेज में क्या आ रहा था, माइक्रोफेज है, न्यूट्रोफिल है, भाई हमें स्टेबलाइज करना है, हमें इन्फेक्शन को हटाना है, हमें डेबरी को हटाना है। तो यहाँ पे वो काम कर रहा था हार्ड कैलस में, ये था इनका प्रोलिफरेटिव फेज, ठीक है। एंड आपका जो हेमाटोमा बना था कि अपना ब्लीड हुआ ठाक से, दैट कैन बी रिलेटेड टू हीमोस्टेसिस ऑफ स्किन। ये मैं बस कोरिलेट करवा रहा हूँ, ठीक है, जाके लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर मत लिख देना। एनीवे सी एनीथिंग, आई विल टेल यू वन मोर थिंग, इन टेकिंग नोट्स जब तुम खुद से पढ़ रहे हो ना, व्हेन यू मेक सच कनेक्शंस, जस्ट ड्रॉ अ बल्ब लाइक दैट साइड में, ये आदत डालो, ठीक है, ताकि यू नो कि फाइनल आंसर में वो सब लिखना नहीं है, तुम्हारा खुद का सोचा हुआ है, ओके। आई डेफिनेटली इंकरेज ऑल ऑफ यू टू थिंक, जितना भी सोच सकते हो कुछ भी कनेक्शन, सो दैट नेक्स्ट टाइम यू थिंक दिस थॉट प्रोसेस विल गेट यू अंडर 100 अंडर 50 रैंक्स, ओके। मतलब ऐसा मुझे तो वही हेल्प करता था, ओके। सो नाउ वी हैव कोरिलेटेड दैट विद दिस। इसके बाद, सो दिस वाज सेकेंडरी इंटेंशन, ठीक है, सेकेंडरी इंटेंशन। अब इसमें से कौन सा स्टेप हटा दो कि दिस विल गो फॉर प्राइमरी इंटेंशन ऑफ हीलिंग। प्राइमरी इंटेंशन मतलब ऐसा कोई स्कारिंग नहीं हो फालतू, एंड एवरीथिंग बिकम्स नॉर्मल एज सुन एज। तो विच स्टेज, हेमाटोमा हटाना पड़ेगा, सॉफ्ट कैलस हटाना चाहिए, हार्ड कैलस हटाना चाहिए, या लैमेलर बोन हटाना चाहिए? 1 2 3 4 टाइप इन योर मैसेजेस, which step should be should not happen so that this goes for a primary intention healing? This should be a potential question, that's what I'm asking. क्या जवाब दे? कुछ कुछ जवाब आया मेरे को, हार्ड कैलस आया, सॉफ्ट कैलस आया, सब आया, ओके। देखो, नाउ आई विल टेल यू समथिंग। अगर हेमाटोमा हो गया, ठीक है, तो सॉफ्ट कैलस तो बनेगा। तो आवर एम इज, सॉफ्ट कैलस बना तो हार्ड कैलस बनेगा, आवर एम इज टू प्रिवेंट दी, जैसे ही अपन जो, हाँ एक्चुअली क्वेश्चन फ्रेमिंग थोड़ा सा वो गड़बड़ हुआ, बट लैंग्वेज व्हाट वी डू ड्यूरिंग दैट इज कि हम लोग हेमाटोमा ही नहीं बनने देते। हेमाटोमा इज नॉट जस्ट ब्लीडिंग एंड ऑल, इट्स लाइक अ स्टेबल हेमाटोमा, ठीक है। तो व्हाट वी डू, जब फ्रैक्चर आता है, जब ब्लीडिंग आ रही है, देन यू क्लियर्ड इट, यू क्लीनड इट, एंड आपने उसको अपोज करा, एंड यू पुट अ प्लेट एंड यू पुट अ स्क्रू, ताकि देर इज नो मोर ब्लीडिंग इन दैट एरिया। देन आपने ड्रेन वेन डाल दिए कि भाई यहाँ पे ब्लड तो हम कलेक्ट ही नहीं हो रहे, बस ब्लड कलेक्ट होगा ना तो सॉफ्ट कैलस बनेगा, बाद में उसमें ऑसिफिकेशन हो गया, वो हार्ड कैलस भी बनेगा, ओके। सो तो प्राइमरी इसमें जो है, यू गो, यू प्रिवेंट हेमाटोमा फ्रॉम हैपनिंग, दैट इज द एम ऑफ ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन, ओके, टू प्रिवेंट हेमाटोमा फॉर्मेशन। शुरू से ही खत्म कर देना है इसको, ओके। Now, so there is no risk of malunion, no risk of non-union, no risk of delayed union. Okay, now we come to nerve की healing. So I had asked you a question. Oh, Wallerian degeneration. यार देखो, कोई भी चीज जब कट जाती है तो proximal degenerate होता है या distal, ठीक है, कभी भी इसमें कंफ्यूज नहीं होने का। एवरीवेयर इट विल बी distal। कुछ एम्प्यूट कर दिया हाथ, तो जो फेंक दिया, जो पैथोमिक है, वही डीजेनरेट होगा ना, जो बॉडी के साथ है वो नहीं होगा। सो जस्ट रिमेंबर दैट वॉलेरियन डीजेनरेशन विल हैपन टुवर्ड्स आपका ये। इन नर्व व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज, नाउ सेम थिंग विल द स्किन। यहाँ पे क्या होगा कि we had inflammation, we had proliferation, and we had remodeling. Nerve में भी first there will be Wallerian degeneration, okay, then everything जो वहाँ पे वो करते हैं, यहाँ पे आपका Schwann cells आ जाएंगे,
वॉलेरियन डीजनरेशन हुआ, देन दे विल ब्रिंग अप Schwann cells जो हैं, Schwann cells, they will recruit macrophages. Same thing has to be done because degenerated चीज को निकालना है ना, the macrophages have to come. Macrophages. So macrophages are coming. They were वहां पे they were coming in late inflammation phase में. Okay. Macrophages will come. Then Schwann's, after they have removed everything, Schwann cells will proliferate. Now what I want you to remember यहाँ पर is Schwann cells will proliferate. The same proliferative phase जो है, proliferative phase again same as skin, proliferative phase, they'll proliferate. Now what I want you to remember is यहाँ पे एक word दिया हुआ है बेली में, bands of Bangner. Okay, so Bangner. What they say is कि these bands are the ones that will guide the axon during our आपका neurogenesis. So just remember this, remember it like a bunker. एक bunker रहता है, तो कुछ ही वर्ड्स हैं जो याद रखना, बाकी तो तुम लोग वर्कआउट कर लोगे. फ्यू थिंग्स आर विच रिविजन के टाइम में ना ये याद आना चाहिए, ठीक है. दिस इज व्हाट विल मेक योर रिविजन वाला थिंग. सो कोरिलेटिंग इट विद स्किन अगेन, मैक्रोफेजेस जहां पर भी आते हैं दे विल क्लियर सम थिंग्स आउट सो दैट प्रोलिफरेशन कैन हैपन, एंड आफ्टर दैट अपना रिमॉडलिंग वगैरह जो भी होता है. तो यहाँ पे भी सबसे पहले देयर विल बी डीजनरेशन, मतलब कि इन्फ्लेमेशन का पार्ट आएगा. इन अर्ली इन्फ्लेमेशन विल बी डीजनरेशन, macrophages आएंगे similar to our late inflammations, and they will clear things up. Then there will be proliferation of Schwann cells by the bands of Bangner. वो याद रखना, bands of Bangner. Bailey में this word is given there. That's why I'm telling you. Okay, proximal and distal का भी बनाया. Now the degeneration, it happens till the nearest node of Ranvier. Okay, if there is a degeneration here, it will happen till here. उसके बाद का आई थिंक द सप्लाई एंड ऑल द नोडल ट्रांसमिशन जो एटीपी चैनल्स वगैरह रहते हैं, दे विल हेल्प, एंड वहां तक तो सिग्नल भी आ रहा है, ठीक है. बियॉन्ड दैट देयर विल बी डिजेनरेशन. लास्टली वी कम टू टेंडन हीलिंग. ओके, टेंडन हीलिंग में आई वांट यू गाइस टू रिमेंबर बिकॉज दिस इज अ लिटिल डिफरेंट. टेंडन डजंट हैव एज सच इसका अपना मेन ब्लड सप्लाई वगैरह नहीं रहता. व्हाट हैपेंस इज इट हैज vincular supply. Now remember this word also, vincular supply. This is also something new. So what is vincular supply? जो tendon है ना, it attaches to the tendon sheath. Okay, flexor tendon, mostly flexor digitorum, superficialis profundus वगैरह में it attaches there, and it has indentations like that. So वहां से, and from the synovial flow, that is what मतलब nutrition देता है to the tendon. Okay, so the healing of a tendon happens in two ways. Now नॉर्मली भी अपने को पता है यार कि अगर किसी को प्लास्टर लगा दिया, वंस यू रिमूव द प्लास्टर ही वोंट बी एबल टू मूव, उतना वो मूव नहीं कर पाते, टेंडन वगैरह सब अकड़ जाता है. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ हीलिंग, एक्सट्रिंसिक हीलिंग एंड इंट्रिंसिक हीलिंग. ओके, एक्सट्रिंसिक जो बाहर से हो रहा है, दैट इज फाइब्रस adhesion between the tendon and the tendinous sheath. Okay, we don't want that. एक होता है इंट्रिंसिक हीलिंग, जो नरिशमेंट आ रहा था ना टेंडन का फ्रॉम विंकुलर ब्लड फ्लो, फ्रॉम आपका सिनोवियल से. दो चीजें, विंकुलर एक होता है विंकुलर सप्लाई, साइनोवियल डिफ्यूजन. ये होता है इंटरनल पावर टेंडन की, यहाँ से इंटरनल हीलिंग. Internal healing is just fibrosis between tendon and tendon sheath. That is totally undesirable, नहीं चाहिए हमें. तो इसलिए हम लोग to do that adhesiolysis of external healing, we ask the patient to mobilize early. लेकिन ज्यादा होकर के रप्चर भी ना हो जाए, इसलिए हम लोग उसको स्प्लिंट भी लगाते हैं. adhesiolysis के लिए एक्टिवली मोबिलाइज करते हैं, स्प्लिंट करते हैं टू प्रिवेंट रप्चर ऑफ रिपेयर. Now what we'll do is, now we'll see how we can remember these summary boxes. Okay, so यहाँ पे I have Bailey with me. We were reading chapter, इसका chapter 3, right? So we have covered almost everything. Local. Now if can you see this box, all of you, है ना? तुम्हारा भी Bailey अगर है तो just we'll go through this. I'll tell you something. Local and systemic factors influencing wound healing में. See, if you see skin tension, if you see ischemia, can you tell me these two factors are also seen in some other healing जो कि अपन सर्जरी में बहुत commonly use करते हैं?
and vascular insufficiency, both, all three. You see that? Anastomotic. Yes, super यार, ये कौन है? Who was this? Tell me a name. रुद्राक्षी. रुद्राक्ष एकदम फोड़ दिया है, जबरदस्त. सी दैट इज हाउ यू हैव टू सी. अब तुमको क्या है ना, अब तुम यहाँ से याद करो यार, एनास्टोम यहाँ पे लिख दो साइड में, एनास्टोमोसिस वाला समथिंग एंड मेक अ बल्ब. ठीक है, अगली बार रिवाइज करोगे ना, बस एनास्टोमोसिस और फैटिस है, खत्म, आगे बढ़ जाने का. ठीक है, तुमको याद भी है यार, ये तो है स्किन टेंशन. तुम यू विल बी एबल टू वर्क आउट ऑब्जेक्ट. सारे क्वेश्चन तुम कर नहीं सकते, यू हैव टू थिंक ऑफ न्यू क्वेश्चन एंड ये अप्लाई करना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ. स्किन टेंशन, हाइपोक्सिया, वैस्कुलर इंसफिशियंसी, वहां भी देखते हैं. ठीक है, अब हमें रिवीजन में क्या देखना है भैया? लिम्फेडिमा. कंटामिनेशन हमें याद आ जाएगा, हम गधे नहीं है. इन्फेक्शन भी हमें याद आ जाएगा, वो हम गधे नहीं है. ठीक है, प्रेजेंस ऑफ फॉरेन बॉडीज हमें याद आ जाएगा. रेडियोथेरेपी. तो रिवीजन के समय बस यही दो याद रखना है. टास्क रिवीजन एकदम खत्म होना चाहिए. ऐसे मार के रखो, हाईलाइट करके रखो, खुद से याद करके सोचना है. रेडियोथेरेपी क्यों हो जाता है? रेडियोथेरेपी व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इन रेडियोथेरेपी में? एक्चुअली एंड आर्टराइटिस हो जाता है. ठीक है, ये पैथोलॉजिस्ट को जब तुम भेजोगे ना, हम लोग कैंसर सर्जरी में पोस्ट रेडिएटेड जो स्पेसिमेन वगैरह भेजते हैं ऑपरेट करके, वो एंडार्ट्राइटिस स्कीन वगैरह, तो ये एंडार्ट्राइटिस हो जाता है. एंडार्ट्राइटिस हो जाता है इसमें ना, वहाँ की हीलिंग गड़बड़ हो जाती है. हीलिंग गड़बड़ हो जाती है, इसलिए हमारी बहुत ही फटती है. अगर रेडिएटेड एरिया है तो वहाँ पे एनास्टोमोसिस वगैरह स्टोमा वोमा करके भाग जाते हैं हम लोग वहाँ से. ठीक है, so that is one. Then lymphedema you have to remember. ठीक है, lymphedema also prevents wound healing में affect करता है lymphedema. That is why आपके there's a whole specialization dealing with lymphedema, and then कैसे pressure bandage लगाते हैं, कैसे वो nodal nodovenous anastomos वगैरह करते रहते हैं, सब सब चीजें. ठीक है, उसके नीचे जो है आपका ओबेसिटी. सी अभी क्या एडवांसिंग एज वगैरह तो याद आ जाएगा, but you might get confused between in obesity. Okay, कि भैया why is it causing inflammation? So can anyone tell me what factor? See, there is insulin like growth factor आता ना, IGF. ठीक है, वो सारी चीजें जो हैं, बाकी की चीजें भी ना, they also cause inflammation. That is why obesity is a known risk factor इन मेनी कैंसर ऑल्सो. जो यूट्राइन कैंसर है, पेल्विक कैंसर वगैरह कई सारे और भी हैं, उसमें ओबेसिटी एक्चुअली, ब्रेस्ट कैंसर में पोस्ट मेनोपॉजल ओबेसिटी हम लोग बोलते हैं, यूट्राइन कैंसर में फ्रैंकली ओबेसिटी, बिकॉज फैट कॉजेज इन्फ्लेमेशन एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन विल लीड टू कैंसर. सो दिस ऑल्सो, ये भी तुम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं. ओबेसिटी ऑप्शन में दिया, तुमको लगा यार ओबेसिटी का वो नहीं से क्या मतलब, बट रहता है. ठीक है, फैट कॉजेज इन्फ्लेमेशन. इन्फ्लेमेशन. न्यूट्रिशन तुमको याद आ जाएगा, कार्ड दो, ये नहीं पढ़ना. स्मोकिंग तुमको याद आ जाएगा. डिजीजेस तुमको याद आ जाएगा. इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज तुमको याद आ जाएगा. मेडिकेशन, स्टेरॉइड, कीमोथेरेपी, तीनों याद आ जाएगा. अपने को रिवीजन के समय तीन ही पॉइंट देखने हैं कि भैया क्या याद करता है: ओबेसिटी, रेडियोथेरेपी, लिम्फेडिमा. बाकी हमें याद आ जाएगा. ठीक है, लेकिन कब याद आ जाएगा? जब कल सवेरे रिवाइज कर लेंगे तब. अभी नहीं, ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिया तो जिंदगी भर याद रहेगा. Okay, 1 second. So that I've told, we just did that table also. See, whatever table is there in there, I'll help you, remember and revision. मेरा काम है छोटा करना तुम लोगों के लिए. Fine. Now we come to, अब हमने healing पढ़ लिया normal. Now we'll come to the aberrations of healing. Okay, तो उसमें आता है prolonged healing. ठीक है, prolonged healing में now there are two things. Okay, अपन को पढ़ना रहता है keloid versus hypertrophic scar. Okay, अब अपने को ये याद कैसे रखना है, दोनों के प्रॉपर्टीज अलग रहते हैं. keloid versus hypertrophic scar. Just remember keloid as keloid. Okay, इतना याद रखो. If you remember keloid as keloid, you'll remember everything. सबसे पहले you tell me कि if a scar is hypertrophied, which मतलब proliferative phase जो है ना, वो लंबा हो जाता है. ठीक है, proliferative phase is long. So obviously किस चीज का एक्सेस हो जाएगा? एनीवन, कोलाजन का एक्सेस होगा कि कोलाजन का एक्सेस होगा? किस चीज का? ठीक है, कोलाजन एक्सेस होगा, then that causes prolonged healing. Now there are two things, keloid versus hypertrophic scar. Ask you, अब याद करो कि भाई किलर है keloid, so keloid will cross boundaries. ठीक है, हदें पार कर जाता है. कोलाजन विल बी डिसऑर्गेनाइज्ड. आई वांट यू टू रिमेंबर दैट कि आपके हाइपरट्रोफिक स्कार में दैट विल नॉट क्रॉस बाउंड्रीज एंड द कोलाजन विल बी पैरेलल. ओके, कोलाजन विल बी पैरेलल. जो किलॉइड था, किलर वाला, इट विल नॉट रिग्रेस स्पॉन्टेनियसली, बट हाइपरट्रोफिक स्कार विल रिग्रेस स्पॉन्टेनियसली. ठीक है,
मतलब यू कैन थिंक ऑफ इट एज स्कूल असेंबली हाइपरट्रोफिक स्कार, कि बहुत सारे बच्चे आ गए हैं लाइन में और वही बच्चे रिसर्च में जो ना हाइपरट्रोफिक स्कार हो गए, ठीक है। सो नाउ देर इज जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन दैट इज ऑल्सो सीन इन किलॉइड, बट नॉर्मली जो होता है ना, जैसे डीप बर्न्स हो गए या अलोंग टेंशन लाइंस, मोस्टली are seen in hypertrophic scars. So hypertrophic scar will be much more commonly seen rather than keloids, because keloid में genetic predisposition भी रहता है, genetic होता है ना, किलर किलॉइड जेनेटिक ऐसा कि वही खराब है। So, proliferative phase was prolonged, that also I've told. We come to classification of wound closure and healing. This is closing. We have क्लासिफिकेशन ऑफ वुंड क्लोजर जो होता है उसमें आपका है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, दैट वी ऑल नो। ओके, टर्शरी इज बेसिकली प्राइमरी प्लस सेकेंडरी, मतलब इफ सम वुंड इज इन्फेक्टेड एंड मतलब देयर इज अ रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, यू डोंट रियली नो, सो अच्छे से वॉश वगैरह दे करके वी कीप इट फॉर 2 to 3 days, and if it is not getting infected we still take up the we still suture it and make it primary, ठीक है। So that is tertiary type of healing, that is 3 plus 2 ka 1. I will, okay. Now we come to, there's another table in Bailey, it is called the ye important, this I wanted to tell you all. All of you guys have Bailey with you, no? Can you guys come to this US Center for Disease Prevention and Control in Surgical Wound Classification? Now there is question that I had made, no, about Manoj का वो हुआ था, then clean contaminated, उसमें कई सारे बच्चों का गलत भी, because this is something which is confusing. तो देखो इसमें क्लीन कंटामिनेटेड डर्टी वो सबको पता है। दिक्कत कहाँ आ रही है, इफ यू सी द डेफिनेशन ऑफ कंटामिनेटेड, व्हाट दे हैव गिवन इज ओपन फ्रेश एक्सीडेंटल वुंड ऑपरेशन विद मेजर ब्रेकिंग स्टाइल टेक्निक, ओपन कार्डियक मसाज और स्पिलेज फ्रॉम द जीआईटी ट्रैक्ट, ठीक है। मतलब आप इंट्रा ऑप आपके ग्रॉस स्पिलेज हो गया, कई बार होता है ना अपन ऑब्स्ट्रक्शन में थोड़ा सा अपना वुंड देते हैं, देन सडनली वो कंटेन नहीं हो पाता है, पूरा स्पिल हो जाता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट mainly differentiates between contaminated and dirty? Can anyone take a guess? One word, एक चीज बता दो जो कि contaminated और dirty को differentiate करता हो। Take a guess, फटाफट। It is actually the time and establishment of infection that makes a contaminated wound dirty. Contaminated है मतलब कंटामिनेशन तो है उसमें, वो तो डर्टी तब बन जाता है जब तुम उसको टाइम दे दो और उसमें इन्फेक्शन बैठ जाए, तुमको पता है कि अभी हो गया, एस्टैब्लिश हो गया इन्फेक्शन एंड इन्फेस्टेशन। सी द डिफरेंसेस विद दिस, ठीक है। कंटामिनेटेड में देखो, कंटामिनेटेड में सी द, ये क्या क्या लिख रहा है यहाँ पे, है ना, कंटामिनेटेड में ओपन फ्रेश, ताजा एकदम, ठीक है। एक्सीडेंटल वुंड हो गया, मेजर ब्रेक्स इन स्टेराइल टेक्निक, कंटामिनेट तो वो हो गया, ठीक है, एंड तुमको पता नहीं था, यही तुमको पहले से पता होता। नॉर्मली कंटामिनेट तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो चला जाता क्लीन कंटामिनेटेड में कि हाँ भाई हम ट्रेकिया खोल रहे हैं, हम कुछ बाउल खोल रहे हैं, हमें पता है हम रिसेक्शन एनास्टोमोसिस कर रहे हैं, बाउल क्लैंप लगाया है एंड देन खोल रहे हैं, एवरीथिंग इज अंडर माई कंट्रोल, पता था ये करना है, क्लीन कंटामिनेट। नहीं पता है क्या करना है, ओपन कार्डियक मसाज, सीधा हाथ अंदर डाल दिया, लगे दबाने। आईसीयू में, ये ओटी में नहीं होता है ओपन कार्डियक मसाज, ये सब देख रखा है, सीवीटीएस की अगर पोस्टिंग लगी हो तो वहां पे वो खोल घाल के चालू कर देते हैं देना वहीं पे, ठीक है। या फिर ग्रॉस स्पिलेज फ्रॉम जीआईटी, अब स्पिलेज हो गया, ठीक है, बट फॉर दैट बैक्टीरिया टू बिकम इन्फेस्टेड टेक्स अराउंड 2 to 3 days। तो ऐसा नहीं है कि उधर डालते ही फिर वैसा इन्फेक्शन हो गया, वो नहीं होता। सो दैट इज जस्ट कंटामिनेटेड। बट इसको अगर तुम छोड़ दो, अब तुम आ जाओ डर्टी पे, ओल्ड ट्रोमैटिक वुंड, देख रहे हो, ओल्ड retained devitalized tissue, those that involve existing clinical infection or perforated viscera. Retained devitalized tissue, those involve existing infection or perforated viscera। तो यार देखो, विसरा यहाँ भी परफोरेट हो रहा था, ग्रॉस पिलेज तो यहाँ भी हो रहा था, ठीक है, बट यहाँ पे हो गया आपका ओल्ड ट्रोमैटिक वुंड, रिटेन डिवाइटलाइज्ड टिश्यू। एक्स्ट्रा चीजें रहेंगी कि इन्फेक्शन है, सिर्फ पिलेज नहीं है। तो जो मनोज आया था ना अपना अतड़ी फाड़ के 3 दिन से, इवन दो इट वाज एक्सपेक्टेड, हमें पता है कि परफोरेशन, बट उसमें इन्फेक्शन बैठ चुका है, दैट वुंड इज नाउ डर्टी, ओके, इट इज नॉट जस्ट कंटामिनेटेड। आई होप ये वाला, दिस कॉन्सेप्ट आई वांटेड यू गाइस टू नो, इसलिए वो बताना था, ठीक है, गुड। तो समथिंग दैट इज फ्रेश स्पिलेज है तो वो कंटामिनेटेड ही है, डर्टी नहीं बनता है, ओके। नाउ वी कम टू दिस वन,
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मुझे बताना था दैट वाज नेशनल नोजोकोमियल इन्फेक्शन सर्वेलेंस में NIS जो है NNIS ये बेली में दिया हुआ है, ठीक है। नेशनल नोजोकोमियल इन्फेक्शन सर्विसेज दे प्रेडिक्ट SSI, उन्होंने मॉडल दिया टू सर्जिकल साइट इन्फेक्शन का। नाउ हाउ विल यू रिमेंबर दैट कि इसमें तीन तीन जहां कहीं भी तीन चीजें हो ना, थोड़ा सा अपना रेडार ऑन कर रहे हैं ना, MCQ में बनाने के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो नाउ सी सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, सर्जिकल तो भैया लेंथ ऑफ सर्जरी है यहाँ पे, ठीक है, लेंथ ऑफ सर्जरी मोर देन 75% ऑफ द परसेंट है, लंबी चल गई सर्जरी, ठीक है। देन इन्फेक्शन में तुम्हारा रहेगा कि जो आपका जो वुंड है वो कंटामिनेटेड है या डर्टी है, कितना है इन्फेक्शन, ठीक है, तो उसके भी एक पॉइंट मिल जाते हैं उसको, ठीक है। लास्ट में बचता है एस, वो एस है आशा का एस। अब रिवीजन में क्या याद करना था, वो यही यही पॉइंट्स आते हैं, बाकी तो तुमको वर्कआउट में करवा दूंगा, जैसे 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 क्लासेस बढ़ते जाएंगे यू विल डेवलप दैट। बट ये भी समझ में आएगा कि यार ये चीजें जो है वो याद करनी है, रिवीजन के समय ये याद करना रहता है कि भाई यार नेशनल जो है नोजोकोमियल इन्फेक्शन सर्वेलेंस है, उसने SSI बोला हुआ है, SSI में एस से सर्जिकल, सर्जिकल में लेंथ, SSI आई से इन्फेक्शन, कंटेमिनेटेड या डर्टी, एक एस अपने को याद रख लेना भैया, आशा का एस, ए से मोर देन 3, ठीक है। नाउ विद दैट बीइंग डन वील कम टू वुंड मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं उस बेली में बहुत ही स्पेसिफिकली दे हैव रिटन कि देयर आर 4 स्टेजेस। देयर इज वन इज प्रिपरेशन ऑफ द वुंड, उसमें आता है आपको एंटीबायोटिक देना, इरिगेशन देना, इरिगेशन ऑफ द वुंड। सो प्रिंसिपल्स, इफ आई वुड राइट प्रिंसिपल्स ऑफ वुंड मैनेजमेंट में सबसे पहले है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में आता है एंटीबायोटिक, टेटनस प्रोफाइलैक्सिस, एनाल्जेसिक, देन आता है वुंड प्रॉपर, उसकी डिब्राइडमेंट, देन आता है क्लोजर, it should not be under tension, and then आता है आपका follow up, ठीक है। Now we enter another important part which is called tetanus का प्रोटोकॉल, वो अलग से दिया हुआ है एंड बहुत ही लंबा है बहुत, बट इट्स अ वेरी elaborate टेबल ऐसे दिया हुआ है। Now right now if tetanus is seen, if I tell you it is in a puncture wound which is soiled, can you tell me the characteristic of Clostridium tetani with this statement? Anyone? Will it be aerobe? Will it be anaerobe? Will it form spore? Not form spore? फटाफट बोलो, फटाफट बोलो, थोड़ा ही सा चैप्टर और बाकी। Aerobic spore forming. ओके ओके, रुद्राक्ष सेड एरोबिक स्पोर फॉर्मिंग। बेटा अगर एरोबिक होता ना, आई वुड नॉट हैव यूज्ड द वर्ड पंक्चर। व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ पंक्चर? कुत्ता काट लेता है रेबीज में, अपन बोलते हैं धोते रहो धोते रहो धोते रहो, क्यों धोते रहो? बिकॉज जो पंक्चर होता है ना, पंक्चर, द टिप ऑफ द पंक्चर, वहां पे ऑक्सीजन नहीं है, दैट इज एन एनारोबिक एनवायरमेंट। तो एनीथिंग दैट इज पंक्चर प्रोन हो रहा है ना, उसमें अगर कोई कुछ हो रहा है वो एनारोबिक ही हुआ। तुम्हारा जो रेबीज वेबीज भी जो है, खैर वायरस रहता पता नहीं जो है, बट वो सारे एनारोब रहेंगे, एंड उसी को अपन धोके जब वुंड डिवाइड करके ना, वी मेक इट एरोबिक। सो क्लॉस्ट्रिडियम टेटनाई इज एनारोब, इट फॉर्म्स स्पोर्स इन डर्ट। तो इसलिए आपका जो वुंड है दैट विल बी, अगर बोलेंगे आपको कि टेटनस प्रोन वुंड क्या है, इट विल बी पंक्चर वुंड, बिकॉज इन दैट होल ऑक्सीजन नहीं, ठीक है, दैट विल बी एनारोबिक, इट बिकम्स spores in dirt also. I will also connect it with something else. So यहाँ पर आपको जो बेली में जो दिया हुआ है, अगेन विल गो बैक टू बेली। आई होप ऑल ऑफ यू हैव बेली ओपन, अपने टैब में खोल के रखा है, बिकॉज वहां से मैं बताता चलूंगा ना आप लोगों को। सी टेटनस प्रोन वुंड दिख रहा है ना, या फिर स्क्रीन पे देखो, पंक्चर टाइप इंजुरीज लिखा हुआ है यहाँ पे, पंक्चर टाइप इंजुरीज इन अ कंटामिनेटेड एनवायरनमेंट। क्यों भाई? क्योंकि क्लॉस्ट्रिडियम टेटनाई पंक्चर टाइप मतलब एनारोब है इन अ कंटामिनेटेड एनवायरनमेंट, बिकॉज स्पोर पड़े रहते हैं उसके। देखो रे, आ गया ना ये बाइट्स, बाइट भी जो होती है ना वो छेद के ना अंदर कर देते हैं, अंदर कर देते हैं, वहां पे ऑक्सीजन है ही नहीं, तो वहां पे वो ग्रो कर जाएगा, ठीक है, कंटेनिंग फॉरेन बॉडीज, कंपाउंड फ्रैक्चर वगैरह वगैरह। ये तो था टेटनस प्रोन। अब इसी में तुम और एडजेक्टिव लगा दो तो दैट विल बिकम हाई रिस्क टेटनस प्रोन वुंड। इसमें लगा दो कुछ भी एडजेक्टिव। क्या होता है एडजेक्टिव? एनी टेटनस प्रोन वुंड विथ वीक कंटामिनेशन, ये वुंड रिक्वायरिंग सर्जरी विथ मोर देन 6 आवर डिले, एक्सटेंसिव डिवाइटलाइजेशन। एक मिनट, अब जैसे ही तुमने ये देखा 6 आवर डिले, व्हाट डू यू थिंक दैट मींस? वुंड क्लोजर में अपन ने 6 आवर कहाँ पढ़ा है रेसिडेंसी में, सर्जरी में? कोई बताएगा? For 6 hours golden period है सर.
यस ब्रिलियंट, हु इज रुद्राक्षी, सुपर। बाकी लोगों की पोस्टिंग वोस्टिंग नहीं लगी है क्या सर्जरी में? खैर कोई बात नहीं। Yes, now see, why do we say 6 hours? देखो, जैसे ही 6 hour का डिले हुआ, it has become a high risk tetanus prone wound. High risk tetanus prone wound हो गया 6 घंटे के बाद। अब तुमने क्या किया? अगर प्राइमरी क्लोज कर दिया तो what have you done now? Anyone answers this? I'll give a 5 star अलग से। If you close now a high risk tetanus prone wound, why should you not close a high risk tetanus prone wound? Why? एब्सेस बन जाएगा सर, वो एनारोबिक क्या हो जाएगा? इन्फेक्शन ग्रो करेगा। क्या बन जाएगा? एब्सेस सर। एब्सेस नहीं तुम्हारा, नहीं नहीं, अच्छा, वो नेक, अरे वो तो बहुत बाद में बनेगा। अभी क्या कर दिया तुमने सो दैट इट ग्रोज? यू मेड एनवायरनमेंट। yes, yes, you converted an aerobic environment into an anaerobic environment। ठीक है, दैट इज द बिगेस्ट क्राइम। इसीलिए अपन डॉग बाइट को सुचर करते हैं क्या? यस, सुपर, वेरी गुड लवनीश। सो दैट इज वाई बोलते हैं ना, रेबीज में टैगिंग सूचर ही लो, टाइट बंद मत करो, डोंट मेक इट एनारोबिक। ठीक है, डोंट मेक इट एनारोबिक। यहाँ पे भी वही द सेम थिंग कनेक्ट्स नाउ। आपका 6 घंटे के अंदर आया हुआ है, वो हाई रिस्क टेटनस प्रोन वुंड नहीं है, उसमें नहीं बनने वाला। आप उसको अच्छे से धोगा, यू कैन क्लोज इट। 6 घंटे के बाद आया है, दैट टेटनस के जो बैक्टीरिया क्लॉस्ट्रिडियम टेटनाई है, दैट वुड हैव इन्फेस्टेड बाय नाउ, डोंट क्लोज इट। इन्फेस्ट कर गए ना तो तुम्हारे इरिगेशन से वो जाएंगे नहीं। देन इफ यू क्लोज इट आफ्टर दैट, हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग टेटनस। कई सारी चीजें साथ में आ रही हैं। ठीक है, तो हाई रिस्क टेटनस प्रोन वुंड भी हमने पढ़ा। now एक बड़ा सा बहुत ही फालतू टेबल ब्रिटेन का दिया हुआ है, इसमें एक ही सिंगल लाइन इसमें तुमको याद रखनी है कि अगर पिछले 10 years में वैक्सीन मिली हुई है तो टेटनस प्रोफिलैक्सिस की जरूरत है, चाहे कुछ कर लो। दैट इज माई सिंगल सेंटेंस। मैं बता दूंगा नोट्स में। ठीक है, क्वेश्चन भी वही आने वाला, अल बल टल लिख के देंगे, उसमें बस एक चीज देख लेना कि पिछले 10 साल में वैक्सीन पड़ी है कि नहीं। अगर पड़ी हुई है तो यू विल नॉट नीड। तुम इसमें सबसे वर्स्ट वाला भी देख लो, हाई रिस्क टेटनस प्रोन वुंड जो है ग्रीन वाला, इफ यू सी हियर। ठीक है, हाई रिस्क टेटनस प्रोन वुंड, इसमें विद इन 10 years, लास्ट डोज विद इन 10 years अगर पड़ा है, देन टेटनस में आपका ये जो है वैक्सीनेशन जो है दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। सीधे ही लिख दिया, बस इतना ही जिस है इसका। बाकी याद कर भी लो तो भी याद नहीं रहने वाला बात। देन वन थिंग इंपॉर्टेंट इज, यहाँ पे दे हैव डिफाइंड क्लीन वुंड्स। ठीक है, क्लीन वुंड्स क्या है? लेस देन 6 hours, जैसा भी अपन बोले। नॉन पेनिट्रेटिंग, अगेन नॉन पेनिट्रेटिंग, पेनिट्रेट करेगा मतलब एनारोबिक है। ठीक है, ऊपर ऊपर का है नॉन पेनिट्रेटिंग, नेग्लिजिबल टिश्यू डैमेज, कोई कंटेमिनेशन ज्यादा नहीं, नेग्लिजिबल टिश्यू डैमेज, नॉन पेनिट्रेटिंग, लेस देन 6 hours। ठीक है, सब कुछ याद रखना है यार, 6 घंटा ये वो सब। एनीवे, इसके बाद इम्पोर्टेंट क्या है? फर्स्ट स्टेप ऑफ डिब्राइडमेंट इज ऑलवेज इरिगेशन। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दी हुई थी कि नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी जो है, बेली में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दी हुई थी कि नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी जो है, वेयर इज इट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड? तो ऑब्वियसली एक्सपोज वेसल्स पे नहीं कर सकते, वो इरोड कर देगा। ठीक है, मेलिग्नेंसी में नहीं कर सकते, बिकॉज मान लो मेलिग्नेंसी यहाँ पर है, देन यहाँ पे तुम एनपीडब्ल्यूटी लगा दे, देन इट विल कॉज ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, अनट्रीटेड ऑस्टियोमाइलाइटिस। क्यों स्पेसिफिकली ऑस्टियोमाइलाइटिस मेंशन किया है यहाँ पे? दैट ऑल्सो तुमको सोचना चाहिए यार कि अनट्रीटेड वुंड क्यों नहीं लिखा, अनट्रीटेड आरटीए क्यों नहीं लिखा, अनट्रीटेड ऑस्टियोमाइलाइटिस? बिकॉज ऑस्टियोमाइलाइटिस इज समथिंग दैट डजंट हील बाय इटसेल्फ। ठीक है, वो ऑर्थो की इतनी हील ही रहती है ना इन्फेक्शन से, इसी के चक्कर में। तो बहुत लोग नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी यूज करते हैं, बट बिफोर दैट यू हैव टू सिंपली ट्रीट इट। तो दैट इज व्हाई यहाँ पे अनट्रीटेड ऑस्टियोमाइलाइटिस में मत यूज करना। तो ऑप्शन क्या आएगा? ट्रीटेड ऑस्टियोमाइलाइटिस। ट्रीटेड ऑस्टियोमाइलाइटिस में यूज करना, बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर टेकन अप फ्रॉम ऑल प्रैक्टिकल थिंग्स दैट वी सी। देन दे हैव रिटन अनएक्सप्लोर्ड नॉन एंटेरिक फिस्टुला। ठीक है, ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। unexplored मतलब you don't know the source of fistula. Okay, if you don't know the source of fistula, then putting NPWT वहां पे it can cause, मान लो ब्लैडर वैडर से या कोई और फ्लूइड अगर खींच रहा है ना, it can cause rapid dehydration वगैरह कर सकता है। ठीक है, एंड एंट्रिक फिस्टुला में भी जो लो आउटपुट फिस्टुलाज है ना, वो उन्होंने लिखा नहीं, बट एक्चुअली लो आउटपुट फिस्टुलाज वगैरह में हम लोग हल्का प्रेशर दे करके लगा सकते हैं, नॉट फॉर हाई आउटपुट फिस्टुलाज। ठीक है, देन if you see another term I'd like to say कि degloving injuries में, जैसे अपन ने वो नर्व में क्या पढ़ा था? बैंड्स ऑफ, लिखो लिखो मैसेज में, बैंड्स ऑफ
नर्व ने, अभी लिख लो, अभी पढ़ लो, ताकि रिवाइज ज्यादा कम करना पड़े, करवा दे रहा हूँ ना। बैंड्स ऑफ बंगनर, ठीक है। टेंडन में ब्लड सप्लाई का क्या था, कौन सी सप्लाई होती है? हाँ, वेरी गुड सर। टेंडन में था विंक्यूलार। वैसे ही इस पूरे चैप्टर में, वेरी गुड, सुपर। तीसरी चीज याद रखो कि जो डी ग्लविंग इंजरी होते हैं ना, डी ग्लविंग, लैंग्वेज सबको समझ में आ रही है ना? इफ एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम टेल मी, आई स्विच बैक। मैं वो मैं खुद ही पढ़ता रहा तो वैसे ही पढ़ाने लगता हूँ, ठीक है। थर्ड थिंग व्हाट यू नीड टू नो इज समथिंग कॉल्ड एज मेरी लगवा दी, मतलब मॉरल लेवल, ठीक है। ये दिस इज अ कलेक्शन बिटवीन फेशियल प्लेन्स। कोई मराठी है तो मजा लावली होता है ना, मेरे को लग गई, वो बोलते हैं। तो डी ग्लविंग इंजरी में कलेक्शन बिटवीन फेशियल प्लेन्स इज नोन एज मोरल लावाली। ये भी याद रखना। तो तीन चीज याद रखेंगे, बंगलर, विंकलर, मोरल लावाली। ये अपना रिवीजन का ये मैं बना के दे दूंगा बाद में, कि तुमको रिवाइज सिर्फ उतना ही करना है। बाकी जो मैंने तुम लोगों से वर्कआउट करवा दिया वो कल रिवाइज करोगे ना, खुद से वर्कअप करोगे, तो ताकि तुझको बार बार रिवाइज नहीं करना पड़े, ठीक है। देन आता है अपना साइंस ऑफ नॉन वाइटल स्किन, इन्होंने बता रखा है उसमें प्रेशर सोर्स वगैरह में। साइंस नॉन वाइटल स्किन, ठीक है। इसमें सबसे पहले लोग देते हैं फिक्स्ड स्टेनिंग। इफ आई टेल यू फिक्स्ड स्टेनिंग, कोई चीज फिक्स्ड स्टेन है, डू यू थिंक दैट इज ब्लांचेबल और नॉन ब्लांचेबल? ब्लांचेबल रहेगा या नॉन ब्लांचेबल रहेगा? एंड स्टेनिंग तो है। तो फिक्स्ड को कैन आई राइट इट एज नॉन ब्लांचेबल? वेरी गुड, वेरी गुड। आई कैन राइट इट एज नॉन ब्लांचेबल। स्टेनिंग मतलब क्या रहेगा? लाल ही रहने वाला है, एरिथमा। बस इसको यहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है भैया। फिक्स स्टेनिंग लिखा ना, मैं कह रहा हूँ कि फिक्स नॉन ब्लांचेबल होगा, स्टेनिंग होता है, एरिथमा कर देंगे, ठीक है। देन अदर साइन क्या है? सेकेंड साइन इज थ्रोम्बोसिस ऑफ सबक्यूट वेन्स। वेन इन नॉन वाइटल स्किन के, स्किन के नीचे वेन जो होता है ना, अगर उनको थ्रोम्बोस हो जाएगा, थ्रोम्बोसिस ऑफ वेन्स। सबक्यूट वेन क्यों बोल रहे हैं हम लोग? क्योंकि सबक्यूट आर्टरी होती ही नहीं, सबक्यूट वेन ही होता है, वही थ्रोम्बोसिस देखा। तो देखो, एज अ डॉक्टर तुम देख रहे हो, अरे भाई ब्लांचिंग है, नहीं जा रहा वेन, अपन वेन कई बार ऐसे दबा दबा के देखते ऊपर जा रहा, नहीं जा रहा, उसका भी थ्रोम्बोसिस हुआ जा रहा है। लास्ट में अपन यूज करते हैं इंडोसाइनिन, आईसीजी डाई वगैरह या फ्लोरेसेंट डाई यूज करा, नहीं जा रहा वहां पे, नॉट रीचिंग, नॉट रीचिंग। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये बेली में दिया हुआ था, मैं भी तुमसे पूछ सकते हैं। आई गिव यू नोट फॉर यू। तो फिक्स स्टेनिंग, थ्रोम्बोसिस ऑफ वेन का थ्रोम्बोसिस स्किन में, और होता ही क्या है, स्किन में रहता है कि तुम्हारा कैपिलरीज है तो उसको थ्रोम्बोसिस हो गया, फिक्स स्टेनिंग हो गया। उसका वेन होता है सबक्यूट, उसका भी थ्रोम्बोसिस हुआ पड़ा है, देन तुमने डाई दी, वो जा नहीं रही, ठीक है। नाउ वी गो टू, जस्ट रिमेंबर दिस विल कम लेटर। नाउ वी कम टू acute compartment syndrome, ठीक है। there is a major change in Bailey 27 versus 28, ठीक है। बेली 27 जो है, वो बोल रहा था कि कंपार्टमेंट सिंड्रोम को सस्पेक्ट करो एंड डू पेशोटमी इफ कंपार्टमेंटल प्रेशर इज लेस देन 30 mmHg, ठीक है। ये बोलता था 27, बट 28 क्या बोलता है? 28 बोलता है 30 Sir, I mmHg think compartmental लेस। pressure more than 30. कंपार्टमेंटल प्रेशर मोर देन 30, कंपार्टमेंटल प्रेशर मोर देन 30, करेक्ट है, ठीक बोल रहा हूँ। कंपार्टमेंटल मोर देन 30, हाँ, मोर देन 30 बोलता था, उसको फेस शॉर्ट में करो। 28 इज टेलिंग व्हेन द कंपार्टमेंटल प्रेशर इज 30, मतलब ये 30 mmHg लेस देन द डायस्टोलिक प्रेशर। ओके, जो डायस्टोलिक प्रेशर है, अगर इंट्रा कंपार्टमेंटल प्रेशर, कंपार्टमेंट सिंड्रोम, हाँ, उधर तो प्रेशर बढ़ेगा, बट फेशियोटोमी का जो 28th एडिशन व्हाट दे हैव टोल्ड इज टू बी डन इफ इट इज 30 लेस देन द डायस्टोलिक बीपी। जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उससे 30 अगर कम पे जा रहा है या उससे लेस है, दिस स्टेटमेंट आई नो इट्स डायरेक्टली टेकन फ्रॉम देयर, तुम लोग चेक कर लेना, बट दिस इज करेक्ट एंड मेक्स सेंस आल्सो। बट नाउ दैट, तो या तो 27 बोला कि द Yes, it is correct, sir. हाँ, इंट्रा कंपार्टमेंटल प्रेशर जो है लेस देन 30 फ्रॉम द डायस्टोलिक बीपी। सो डायस्टोलिक बीपी इज मतलब दैट इज द मिनिमम प्रेशर जो है विच वहां पे परफ्यूजन के लिए चाहिए, ठीक है। सो वंस दैट इज आल्सो ड्रॉपिंग, ओके, देन यू नीड टू डू दी फेशियोटोमी। ये याद रखना, नोट्स में मिल जाएगा, लेस देन 30। पहले बोलते थे इफ इट इज
that intra-compartmental pressure I need to check once. कि I didn't think of it at that time. मेरे को लग रहा था कि दोनों less than 30, but yeah, compartmental pressure. If if that pressure will lie, then only we can go for a fasciotomy. And that 28th edition is mentioning that if it is pressure is matching, then only the gap of diastolic pressure and that intercompartment pressure will be less than 30. If it is increasing, then only the gap will be low. ठीक है, करेक्ट बोल रहे हो. I'll post a clarification also. हाँ, they mentioned it as threshold. I know. Reasoning wise, when I was reading, I had some thought process. I'll clear it out tomorrow. That's a nice thing. अपन भी सीखेंगे. Okay. Hey, because it makes sense ना कि diastolic if it is less than 30 mmHg from diastolic BP. Now suppose diastolic BP is 80. ठीक है. So what should be your threshold? As per Bailey 27 तो simple है, 30 के ऊपर चला गया तो what is the threshold as per Bailey 28 then? 30 is considered threshold, yes, and I'll show you Bailey. Anyway, we'll take it up. अभी रात हो रही है, we'll finish it off. This post on the main group अपन discuss करेंगे, ठीक है कि what should be there. It's a good thing. And remember how to do fasciotomies. I hope you guys remember. ये भी तुम लोग को आना चाहिए. You have to take longitudinal incisions and you have to cut the deep fascia also. For example, अगर आपका mostly fasciotomy, maybe they can ask a question over this practically. कि suppose this is your tibia, this is your fibula, tutku. Then there is an anterior compartment, there is a lateral compartment, there is a posterior compartment. Posterior superficial, posterior deep भी रहता है. So you make two incisions. Okay, remember that. Tibia में palpate your own tibia, जो medial edge है, medial border, okay, जिसमें कि मैं included हूँ. Anyway, medial जो है, medial border उससे 2 सेंटीमीटर पोस्टीरियर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर पोस्टीरियर में एक इंसिजन देते हैं. एंड जो एंटीरियर बॉर्डर है टिबिया की, बिकॉज दिस इज सबक्यूटेनियस, यहाँ पे तो स्किन है, कोई कंपार्टमेंट है ही नहीं. अगर आपको ये कंपार्टमेंट्स रीच करना है ना तो कंफ्यूज मत होना, आ जाओ, उस पर ड्वेल मत करो, एक सवाल पे ड्वेल मत करो. आज रात भर का टाइम है, कल डालना पूरा मेन ग्रुप पे. दैट इज ऑल्सो वन एटीट्यूड. एक टॉपिक एक कॉन्सेप्ट पे ऐसा लग नहीं जाना है. गलत हो गया कोई बात नहीं, अपना प्राइड स्वालो करके आगे बढ़ जाओ. आप लोगों को उस दिन वहां जाना है भाई, सुपर में. तो ठीक है, कोई व्हाट आई टोल्ड यू एंटीरियर बॉर्डर का 2 सेंटीमीटर लेटरल, सो दे कैन मेक क्वेश्चंस लाइक दैट. तो एंटीरियर बॉर्डर का 2 सेंटीमीटर लेटरल या मिडिल बॉर्डर से 2 सेंटीमीटर पोस्टीरियर. इफ यू गो टू ये दोनों जगह पे वी मेक इंसिजन फॉर द fasciotomy. This will open your anterior and lateral compartment and this will open your posterior compartment. ठीक है, fasciotomy. ओके, अब मेरे को बता दो नेक्रोटाइजिंग fasciitis में कौन सा पस निकलता है? ग्रे कलर का रहता है. हाँ ठीक है, वेरी गुड, डिश वाटर पस. Now we saw two things. We saw hypertrophic, जो proliferation phase जब बड़ा हो जाता है ना, lot of collagen आ जाता है, that makes your scar. Hypertrophic versus keloid, kill में ऐसा रखना, crosses boundaries, आपका woven रहेगा, collagen will not be parallel, they will have genetic predisposition from that, murderer है वो genetically. Then now we come to chronic wounds. तो स्कार और क्रॉनिक वुंड में क्या फर्क है कि स्कार में था द प्रोलिफरेटिव फेज हैड इंक्रीज, क्रॉनिक वुंड में इंफ्लामेटरी फेज बढ़ा हो जाता है. ठीक है, इंफ्लामेटरी फेज विल बी प्रोलॉन्ग प्लस देयर विल बी इन्फेक्शंस, इधर उधर से पड़े रहते हैं. ऑब्वियसली आई टोल्ड यू ना, प्रोलिफरेटिव फेज में ही आपके मैक्रोफेजेस आते हैं ना टू कंट्रोल इन्फेक्शन, डिब्राइडमेंट वगैरह करने. तो इन्फेक्टेड रह ऑब्वियसली दैट इन्फ्लामेटरी फेज जो है and proliferative phase, mainly inflammatory phase है, that will be increased in chronic wounds. and आपका proliferative phase increases because वहाँ पे collagen ज्यादा रहता है. in scars, hypertrophic versus keloid में इधर आता proliferative, fibroblast, and inflammatory में इधर आता अपना macrophage. Now few more questions that have been asked. The most common leg ulcer जो है वो venous होते हैं, and chronic wound converting into squamous cell carcinoma will be Marjolin ulcer. Okay. Now we come to Bailey में जो है pressure ulcer. ठीक है. Now what Bailey 28 में what they've changed is they've said कि pressure ulcer is now known as pressure injury. Okay. Pressure ulcer to be known as pressure injury. The moment I say that,
देखते ही तुम्हारे दिमाग में एक चीज आना चाहिए, क्या हटा दिया यहाँ से इंजरी से? अल्सर नाम को हटा दिया। सो व्हाट इज अल्सर? ब्रेक इन एपिथेलियम, Break in the epithelium. है ना? यस। अगर मैंने ये वर्ड हटा दिया, यानी कि मैं कोई तो ऐसा लेकर के आने वाला हूं जिसमें कि इंटैक्ट स्किन आ जाएगा, इसीलिए तो मैंने अल्सर हटाया। समझ रहे हो? प्रेशर अल्सर को अगर मैं प्रेशर इंजरी बोल दूं तो वरना तो प्रेशर, सो दैट इज, वहां से आपके दिमाग में ये टक से आ जाना चाहिए कि भैया प्रेशर अल्सर को इफ दे आर चेंजिंग इनटू, यस वेरी गुड वेरी गुड, द मोमेंट दे हैव चेंज, इसका मतलब भी ये है कि दे वुड हैव ब्रॉट इन की ग्रेड 1 स्कोर में देयर इज एन इंटैक्ट स्किन, देयर इज नो अल्सर, अल्सर नीड नॉट बी प्रेजेंट एट ऑल। ओके। सो यूएस नेशनल प्रेशर इंजरी एडवाइजर पैनल, फिर से अपन बेली पे चलते हैं। देखो यहाँ पे दोस्तों, नॉन ब्लांचेबल तो हम लोग और क्या बोल रहे थे अभी तक? कुछ देर पहले हमने इसे बोला था फिक्स्ड, ठीक है, एरिदिमा, हमने बोला था फिक्स्ड स्टेनिंग ऑफ इंटैक्ट स्किन, मतलब ये स्किन मर चुकी है। मैंने बताया था ना फ्यू साइंस ऑफ नॉन वाइटल स्किन, तो पहले ही बोला था मैंने कि फिक्स्ड स्टेनिंग, देन दूसरा क्या था? रिवाइज करो फटाफट, वेनस थ्रोम्बोसिस ऑफ सबक्यूटेनियस वेन। तीसरा क्या था? तीसरा बताओ फट से। ICG not reaching या fluorescent dye, same thing has come here. So that is why this is a pressure injury. अगर ये स्किन वायबल होती तब तो कोई दिक्कत ही नहीं था ना, ये तो जीवन ही हो जाता। ओके, दैट दिस वुड बी इन आवर लाइफ, बट इट इज अ नॉन वाइटल स्किन, बट अल्सर नहीं हुआ है, होगा कभी ना कभी, अब भी नहीं हुआ है, बट ट्रीट इट एज अ प्रेशर सोर इंजुरी। आप ये डालेंगे, देन यू स्टार्ट दो थिंग्स नो, आप रोटेट करना शुरू करेंगे पेशेंट को, एयर मैट्रेस लगाएंगे, वो सब शुरू करेंगे। अगर नहीं कर रहे कि भैया अल्सर ही नहीं है, चल रहा है, चलने दो, तो हो ही जाएगा, तो लेट हो जाएगा। अपना काम है चीजें इंप्रूव करना, चीजें पहले पकड़ना, ठीक है। तो अगेन, सो स्टेज 1 इज नाउ प्रेशर इंजुरी। रिमेंबर, इंजुरी अल्सर था पहले, अब इंजुरी बनाया, यानी कि इंटैक्ट स्किन तो होगा, लेकिन इंटैक्ट स्किन होगा तो वो मरा हुआ होगा। मरा हुआ होगा मतलब हमने बोलता फिक्स्ड स्टेनिंग, फिक्स को बोला था हमने नॉन ब्लांचेबल एरिथमा, नॉन ब्लांचेबल एरिथमा ऑफ इंटैक्ट स्किन। मरा हुआ स्किन है बट अभी तक गया नहीं, सो दैट इज पार्ट ऑफ। बाकी तुमको याद रहने वाला है, पार्शियल थिकनेस, फुल थिकनेस विद टिश्यू लॉस, अनस्टेजेबल फुल थिकनेस प्रेशर इंजरी। कई बार अपने को समझ में नहीं आता, कंसल्टेंट को भी समझ में नहीं आता चल क्या रहा है, डेविडेंस इसलिए बना रखे हैं। डीप टिश्यू प्रेशर इंजरी, ये तुम लोग बाकी के तो याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट था, वो मैंने तुमको बता दिया, कैसे याद रखना है वो भी बता दिया है, ठीक है। नाउ अभी 3 नाम दिए, 3 नेम्स दे हैव पुट, उसमें दे हैव पुट इट एज प्रेशर अल्सर स्केल। वो 3 नाम याद रखना, मैंने वो वाटर विथ ब्रेड एंड नॉटन, मतलब ब्रैडर, वाटर फ्रंट, नॉटन, वो भी तुम्हारे आई गिव यू नोट्स, वो भी याद करने के लिए मैं स्टार मार्क कर दूंगा, जो जो रटने वाले हैं ना 4-5 चीजें, वो या देख लेना, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इन प्रेशर सोर्स वगैरह में, सर्जरी इज नॉट द फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट। ये नहीं कि उठा करके ले गए, मोस्टली बिकॉज मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स विल वेरी पुअर परफॉर्मेंस, पर ऑब्वियसली 3 के ऊपर होने वाला है, ठीक है। पेशेंट्स पड़े हुए हैं ना मोर देन 50% ऑफ द टाइम ऑफ द डे, तभी तो उनको प्रेशर सोर हो रहा है। अब उनको उठाकर तुम ऑपरेट कर दो तो अनेस्थीसिया से ही उड़ जाएंगे बेचारे, ठीक है, अनलेस लोकल लोकल दे सको तो सर्जरी इन जनरल इज नॉट द फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट। ये लाइन बेली में दी हुई है, तो दे माइट मेक अ क्वेश्चन ऑन दिस, नोट्स में आपको मिलेगा, स्पेसिफिकली मैंने लिख दिया, ठीक है। नाउ वी हैव कम टू ऑलमोस्ट लास्ट, कम टू क्या, लास्ट पार्ट में ही आ गया कि जो, लेकिन जब आप सर्जरी करेंगे मोस्टली द मैनेजमेंट विल इंक्लूड फेशियो और मायोक्यूटेनियस फ्लैप, ठीक है। यू विल नॉट ट्राई टू डू प्राइमरी क्लोजर, स्किन ग्राफ्ट वगैरह होल्ड नहीं करेगा, सो डोंट ट्राई स्किन ग्राफ्ट ऑन अ प्रेशर स्पोर्ट, कभी भी नहीं। हम लोग जो हील वगैरह, जो डायबिटिक फुट होता है ना, हील में भी वो, उसमें भी अपन लैटरल प्लांटर फ्लैप वगैरह करते हैं। सर्जोंक में भी हम लोग मेलानोमा ऑफ द फुट वगैरह हो जाता है तो वी डू दैट फ्लैप आवरसेल्फ, तो घुमा घुमा के, वो टिकता नहीं है लेकिन कुछ तो करेंगे। नाउ लास्टली वी कम टू मैनेजमेंट ऑफ स्कार, ये आज का लास्ट टॉपिक है। मैनेजमेंट ऑफ स्कार में देखो यार, अपन बेसिकली 5 फ्लोरोयूरेसिल देते हैं, कीमोथेरेपी है, दैट इनहिबिट्स फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है। 5 फ्लोरोयूरेसिल कैसे काम करता है पता है तुमको? एडनिन साइटोसिन थायमिन, तो यूरोडिल वहाँ डीएनए में घुस करके रोक देता है फाइब्रोब्लास्ट को। जो लेजर थेरेपी है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लेजर वगैरह, व्हाट दैट डज इज वो वाटर को इवेपोरेट कर देता है एंड देन मेक्स न्यू होल्स
एंड उसमें क्या होता है, आपका जो रीमॉडलिंग हो रहा था ना टाइप 3 टू टाइप 1, वो फिर से इनिशिएट हो जाता है। ये दो चीजें नहीं दी हुई है, मैं बता देता हूँ। फ्रैक्शनल लेजर था एंड 5-fluorouracil यूज करते हैं, दैट टेबल इज देयर इन बेली, ये नीचे में तुम देखो, इसका रीजनिंग मैंने तुमको बता दिया। ये है क्या इधर, फ्रैक्शनल थेरेपी, इंट्रालीजनल, 5-fluorouracil, सिलिकॉन जेल एंड वो सारा कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। माइनर कोलॉइड, मेजर हाई रिस्क किलॉइड, सिलिकॉन जेल, इंट्रालीजनल, 5-fluorouracil, वो दोनों। तो लेजर यूज करते हैं एंड 5-fluorouracil यूज करते हैं फॉर दैट। ओ हाँ, लास्ट में देखो कॉन्ट्रैक्चर्स का मैनेजमेंट है ना, जेड प्लास्टी, वो मैं बता देता हूँ। आई थिंक पता नहीं, तुम लोगों ने जेड प्लास्टी करी है? यू गाइस हैव डन जेड प्लास्टी? तो कॉन्सेप्ट आजकल क्लिनिकल भी पूछ दे रहे हैं ना, इससे मैं सोचता था कि बता दूं। करें हाँ ना, गिव मी थम्स अप और राइट नो, नॉट डन। नॉट डन किया तो मैं बता देता हूँ, कर रखा है तो मैं काय को बताऊँ, सबने कर रखा है, छोड़ो हटाओ, फिर नहीं बताता। गौरी ने नहीं। ठीक, देखो बेटा, होता क्या है, ये जो आपका कॉन्ट्रैक्चर है ना, ये मान लो, ये रहा आपका कॉन्ट्रैक्चर, ठीक है। सिंपली आपको इसका प्लेन जो है ना वो चेंज कर देना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि आप दो इस पे इंसिजन लगाओ, ठीक है, एंड देन इधर एक, ये दो फ्लैप्स बना करके यू रोटेट देम। रोटेट करोगे ना तो ये मान लो ऐसा है, दिस बिकम्स लाइक दिस, इधर आ जाता है एंड ये स्कार इधर आ जाता है, ठीक है, ये ऐसा आ जाएगा। बीच में काट करके लुक है ऐसा, ये कॉन्ट्रैक्चर है, हमने दो स्कार मारे एंड देन इसको ऐसे ऐसे करके फ्लिप कर दिया। ऐसे फ्लिप करने से क्या होता है, ये जो कॉन्ट्रैक्चर था ना, अब ये इस लाइन में cos थीटा का फोर्स लगाएगा। वो अपन पढ़ते थे ना, वेक्टर फोर्स है तो एक एंगल पे है तो उसके अलोंग जो होता है cos थीटा, जो कि कम रहता है मेन वाले से, ठीक है, एंड ये इस लाइन पे cos थीटा। तो दोनों तरफ से जो है तुम्हारा फोर्स भी कम हो जाता है, प्लस एक्स्ट्रा स्किन जो है वो आ जाती है। ये इसमें मैं बना करके कैसे बताऊं, फ्लैप में तुम वीडियो देख लेना। कॉन्सेप्ट ये है कि तुम दो स्किन, जो हेल्दी स्किन है ना, देखो एक चीज और याद रखो, कहीं भी अगर तुम्हारा वूंड क्लोजर नहीं हो पा रहा है ना, जितने भी फ्लैप फ्लैप है ना, बेसिकली वो आपको जो लूज स्किन है ना, वो वहां की लैक्सिटी उठा करके जहाँ पे स्किन नहीं बच रहा ना, वहां पे घुसा देते। तो कॉन्ट्रैक्चर में तो यार ये कॉन्ट्रैक्चर हो गया, बट ये और ये स्किन मेरी नॉर्मल है, मैंने क्या किया, मैंने इधर इधर काटा, नॉर्मल वाली स्किन वहां पे बीच में घुसा दी, तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बेसिकली, और वो खत्म हो जाता है। दिस सेम प्रिंसिपल यू कैन यूज ऑन्कोलॉजिकल सर्जरीज में, कई बार बहुत बड़े रिसेक्शन हो जाते हैं। दिस इज व्हाट वी यूज फॉर क्लोजर्स एट मेनी प्लेसेस, ठीक है। तो व्हाट इज मल्टीपल जेड प्लास्टी, ये लंबा था जेड हो गया तो इसको छोटे छोटे जेड बना दिए हमने, यहाँ आया छोटा छोटा चेंज करिए, इसको ऊपर, इसको नीचे, इसको ऊपर, इसको नीचे। तो दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ जेड प्लास्टी। ये सारा कुछ मैंने बताया। नाउ व्हाट आई वांट यू ऑल टू डू इज गो बैक टू द क्विज, सी दी ऑप्शंस, ट्राई द क्विज वंस अगेन। कल हम लोग फिर से आपको दे देंगे नोट्स में दे दूंगा। नोट्स में मैंने सिर्फ वो सारी चीजें लिखी हुई जो रिवाइज करने की हैं, बट आई वुड डेफिनेटली टेल यू कि कल सवेरे जब उठो बढ़िया एक चाय वाय पियो, एंड आज हमने जो जो कुछ डिस्कस किया ना, जैसे चीजें लिंक कराई है मैंने, वो उसमें नोट में शायद लिखा ही हुआ है सब कुछ, उससे भी जाकर के जाओ। दैट फिनिशेस आवर क्लास, फिनिशेस दिस चैप्टर फ्रॉम बेली, ठीक है। तो आई मेड यू ऑल थिंक, आई होप आई मेड यू ऑल, मतलब मैं बहुत ज्यादा इंटर टॉपिक्स में घुसता हूँ, दैट इज माई वे स्टडिंग एंड आई होप यू लाइक इट, बिकॉज देखो यार मैं, मतलब आई एम वेरी फ्रैंक अबाउट इट यार। देखो गुरप्रीत गुरप्रीत बहुत ज्यादा पढ़ते हैं मुझसे ज्यादा, ठीक है। तो आई हैव टू कवर अ लॉट मोर इन वेरी लेस टाइम, सो ऐसा 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 चलता है मेरा। पढ़ाई की सारी बातें रहेंगी टेलीग्राम पे, जैसे हमारा जो इंट्रा कैपिलरी जो प्रेशर वाला वो वाला पॉइंट था वो पढ़ेंगे इधर। एंड आई एम सो ग्लैड यू आर लाइक माई वे ऑफ स्टडिंग विच इज ऑल्सो अ टेस्टेड स्टडी, कोई इशू नहीं उसमें। that is a bit different from what you'd say conventional studying का method. Anything, देखो तुम लोग के लिए क्लास है, you guys have come forward कि हमें करना है सुपर स्पेशलिटी, हमारा काम चूंकि हमने कर रखी है, so we want you all to get selected. I taking this, me and Gupit are taking this very personally, ठीक है। हमारा दिन भर में 10 बार केसेस खत्म करके रात को तुम लोग के लिए प्लान करते रहते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो तो दैट बी इनफ, ठीक है। बाय, अब Sir, चले जाओ, सब सो जाओ। लवनीश कुछ बोल रहा है? sir, I have doubt on question number 5, sir. If you can discuss, हाँ, या what is the टेल। fall
What is the false about healing in tendons? Extrinsic healing is desirable. Actually, intrinsic healing is desirable, sir. Yeah. So false I have asked. No? First is false, no, sir. Question number? Sir, 5. What is false? Extreme here. First is false. Whatever given as answer. Sir, I take you first, but it showed wrong, sir. Actually, I don't know why. It showed wrong. Then which one did it show as right? In my, Sprinkler is it, associated with injury. That is correct. Early active mobilization need promote rupture. Early active is needed to promote rupture repair. It would have shown three. I think two things have. It should have been intrinsic healing is desirable. But anyway, your answer would have, that is a correct thing. What you because the early oh, active mobilization is needed to prevent मतलब adhesiolysis. ठीक है to promoter of repair. yes, yes. Mm-hmm. Question number 7, you can tell, sir, please. Seven. 7. This actually, what I know is this question was coming, it has already been asked, okay, and I purposefully put this as a, there will be some out of the mind questions, jiska kuch some theory, they will have some Purana professors, when they make these questions, no, they will have this thing stuck in their mind. Iska explanation also I tried to find out. I couldn't, so I just put it so that you guys go through this question. If it comes, it has been asked 3-4 times here and there. A split skin graft is form of healing by. Now, what I feel is when I was reading ki by tertiary healing is primary plus secondary, like delayed. No, so when you put Yes. skin graft, obviously after some time, I feel this would have been like there would have been some uh, poor tissue with some infected, and they would have debrided it, and they would have put something, and then granulation tissue. Again, then we put that skin graft, right? So maybe that's a very distant shot of why this would be. I tried finding this explanation, but I didn't get it. And this was something that we found out from some other group and all that. The repeat questions when we were going through. Okay. Just remember it Question as number this. But 15, sir. five. Question number 15. 15, yeah. Tell me what it is. 15. Total Contraction begins. wound contraction. Actually, it's a very old known question. It's from some of the questions we have taken from other books. Okay, like this was a line written in old edition of Subsistence. When does wound contraction? They will say that all the steps of healing proliferation they will start almost all the time. So wound contraction will actually the moment you start injury happens, it starts from there, and later on, when fibroblast, myofibroblast, when the duration into it, and then the contraction reaches there, and then wound contracts to almost half of it by 2 weeks this week. But the process of contraction, that starts as soon as when the injury happens, the contraction will start from there. It's a known taken up line from the book source I'll mention tomorrow. The answer will be third, sir. Immediately after injury. It starts from immediately after injury. I'll post the source tomorrow. It's taken directly from Sir, a book. actually, in Berry, they mentioned some fibroblasts differentiated to myofibroblasts, and that which are contractile cells. So they will play an important role in contraction. Yes, So correct. that's why. So that is exact reason why I have posted this. I'll post the source tomorrow. I'll clarify this also. No, don't worry. Okay. Tomorrow you'll get it. 7. Good. Yes, I'm taking 2 more minutes, sir. 17 question, second option, sir. 10th question, sir. Second option, split. Can be harvested from degloved non-viable skin. Again, it's a direct line from Bailey 27. They have written. Because it doesn't need its own pedicle supply. No, it basically depends. What does skin graft depend on? It depends on imbibition from the recipient, that recipient area. That's why do you think we have to keep it? All SSGs are devitalized. Yes, but when do they get their supply? Ella? When do they get their nutrition? Imbibition happens, no, and they fixate on it. So that is why for the first 2 days, 48 hours, you put splint. You don't want that skin to move at all for the first 2-3 days, because that's when the neovascularization and first 2 days will be imbibition, like it will just directly imbibe, and then neurovascularization and all that. Yes. But the non-viable skin also we will put, sir. So the yeah,
The skin is non-viable. The donor, the recipient area has to be viable. Look at this. This is 27. No? So if you see here, this one, this split skin graft can be harvested from the degloved non-viable skin and mesh cover the raw area. This is an immediate injury. Again, this is not like something happened after 3-4 days. Something is degloved. So ऊपर वाला has made the skin graft for you. यहाँ पे भी anyway we are taking it up, and as soon as the Humvee knife, once we have rubbed at the skin that has come out, is devascularized only. So any fresh degloved skin, non-viable skin can be harvested. So that is a fact that you have to remember. Bailey, then they'll definitely make Oh. questions. In this last question, sir, 18th question, sir. Fever will Yeah. not present or erythema will not present, sir? Again, this one, see what I've said, erythema beyond edema. What it is edema beyond erythema, no? That is what we always see, right? The edema which you palpate will be beyond the erythema which you are seeing. That is why upon when we are debriding also we go much beyond than what we are only seeing, right? And fever in very good question. So why necrotizing fasciitis or necrotizing infection actually do not, fever is rather uncommon. It is because the rapidity of infection is so much that they cause thrombosis of the vessels all around. So that prostaglandin and all which cause fever, they are not released into the blood at all. So they will definitely have unusual pain, yes, crepitus, yes. Fever is often absent. Again, a direct quote from Bailey. Okay, it's a direct quote from Bailey. So fever is often absent in necrotizing infections. Remember that. Edema will be beyond erythema. Okay, thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much. Hey, thank you so much, Lavni. That was a very good analysis. I loved it. I want all of you to, scrutinize these tests because these are your tests. These are our tests. We are all together in this. There's no hard feeling. Don't think you'll feel good, bad. क्या है, कहाँ से है? Shall we finish? 58. 1 hour class was it? No, okay, about that also. Tomorrow morning revise it. Otherwise it will be of no use. Okay. Bye guys. Okay, sir. Thank you so much. So as in yesterday's class हमने देखा था ना, where that wound contracture का question was there. Well, actually वो मैंने short से लिया था, source mention करना भूल गया था. But then going back to things, I feel कि Bailey has to be the first book that has to be referred, and I went through Bailey once again. वहाँ पे कहीं भी that statement is not given. Rather they have written कि that the whole myofibroblast का maturation occurs only after fibroblasts come up. So yeah, that answer, I don't feel it should be considered. That wound contracture starts immediately after that. So we'll go by Bailey, and that we will not consider. Okay, and in future I'll also after I've read shorts and all, I'll definitely cross check with Bailey also. Okay, so good one, Lavnish, and good one everyone who did the test yesterday.